afternoon to for today's our sessions now, and we have a very good young speaker who is interested in primary care psychiatry, and it is my honor to introduce him. He is a Dr. Rahul Patle. He has finished MD psychiatry from NIMANS and he has finished postdoctoral fellowships in community mental health. Now he is with us as a senior resident. So now he will talk about common mental disorder uh, with all of you. So he will talk about what are the common mental disorder, why are we calling common mental disorder, why it is important for all of you, and when it is important for all of you, what has been happening with these illness in your clinic, and what should happen, and how it can be integrated in your regular practice without killing your long time and without teasing your brain. I hope that is the message we want to convey in this session. I am sure Rahul, you will convey the message without brainstorming them, without triggering their cerebral. Just go to spinal level and teach them so that they will be able to engage in their integrate in their regular practice. And in that case, one of very important criteria for with us is that we don't want you to spend even extra second with your patients by to integrate psychiatry. Whatever time you are spending till now, same time within same time, how to refine your skill. That is the only thing we are targeting. We don't want anything, even extra second also we don't want. So please remember that way. In me, it means whatever you are doing with the same time, you can do the psychiatric practice also. Okay, thank you very much. And if anybody has any question in between, please ask us to stop and ask the question that time only rather than waiting for end. Because at the asking question at the end may be sleepy for many people. If you ask question, you'll get up. Okay, so that will trigger and having interactive sessions. Yeah. So in that background, I would request Rahul Patle to just begin his talk. Thank you, Rahul. Thank you so much, sir, for the introduction. Today's presentation, like sir said, I am going to focus mainly about the common mental disorders, which we come across most commonly in the regular PHCs, and why we call it as common mental disorders, and what are all the disorders which come under rubric of this. And I am going to focus mainly on the manual which we have been provided to you all in terms of how to diagnose from that manual very quickly and fastly, like sir said, within the stipulated time which you generally give it to your patients. जितना समय आप अपने पेशेंट के साथ बिताते हैं क्लिनिक में, उतना ही समय में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम अगर कोई आपके सामने आता है, कोई पेशेंट, उनको कैसे आपको स्क्रीन करना है और ट्रीटमेंट इलाज कैसे स्टार्ट करना है, सिर्फ इतना ही हम बताना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको. ओके, सो लेट आई विल गिव अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. उसके बाद देन वी कैन डिस्कस. अगर बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप बीच में आप अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हैं, नहीं तो एट द एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. जो आपको क्वेश्चन बीच बीच में आता है वो बहुत दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि किसी को सोने के समय नहीं पड़ेगा. प्लीज आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन आल्सो. थैंक यू. सो So the outline of the presentation would be about what are CMDs and why it is important for a medical officer to know about these CMDs, and then how to approach a common mental disorder using the clinical schedule of psychiatry, the manual which has been provided to you, and when we should refer cases, if at all, if some cases come to us. So common mental illnesses, common mental disorders are generally depression, anxiety, which includes generalized anxiety disorder, panic disorder, then somatization, and then mixed disorder, which can include symptoms of all the above disorders. So in तीनों को मिला के we call it as common mental disorders. So why we should know that about these disorders in a primary care setting? So as you can see on the slide, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो किया गया था 2015-16 में इंडिया के लिए टू सी द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन आवर कंट्री इटसेल्फ, उसमें हमने ये देखा है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर अबाउट 3.5%,
and depression disorders are about 3%. Okay, तो हालांकि जब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में द प्रेवलेंस इज मच मोर, तो 20 to 50% of the cases which come to primary health centers might have some or other common mental disorders comorbid with other medical illnesses. And why we should know about this is because it has significant morbidity and disability. जैसे कि लोगों को काम करने में दिक्कत होता है, अपना खुद का देखभाल करने में दिक्कत होता है. So because of this, it is important for us to recognize, to treat these disorders at a very early level. So if you go back, कि क्लासिकल साइकेट्री में कैसे इनको डिवाइड किया गया है. सो इफ यू सी इन साइकेट्री टेक्स्ट बुक्स, इनका डिवीजन हुआ है जैसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ICD-10 में, तो इनको डिवाइड किया गया है मूड डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेशन, फिर न्यूरोटिक, सोमैटोफॉर्म और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर एंजाइटी और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. बट हमने प्राइमरी केयर साइकेट्री के लिए नहीं तो जनरल प्रैक्टिस साइकेट्री के लिए इनको पूरा कॉमन करके एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हमने रखा है. सो व्हाई इट्स ट्रांस डायग्नोस्टिक कैटेगरी इज मेड, बिकॉज इनमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि एक दो डिसऑर्डर के फीचर, डिप्रेशन में कुछ फीचर्स एंजाइटी के हो सकते हैं, सोमाटाइजेशन में कुछ फीचर्स एंजाइटी के हो सकते हैं, और सबका एक एक फीचर उसमें हो सकता है. तो सबका कॉमन फीचर्स है, इसीलिए हम इनको एक रूब्रिक के अंदर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर इनको हम रखे हैं. तो कैसे कोर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है और कैसे रिपोर्ट किया जाता है कोर सिम्टम्स, वो देखना चाहिए. और पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो भी क्लासिकल साइकेट्री टेक्स्ट बुक में दिया है, उन सब के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू यूज अ होल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. हमने एक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर बनाया है जो मैनुअल में है. वो स्क्रीनिंग क्वेश्चनर देख के आपको मालूम होगा कि इससे अगर आगे आपको डायग्नोस करना है नहीं करना है, आगे और क्वेश्चंस पूछना है नहीं पूछना है. तो और इनके मैनेजमेंट में बहुत सारी सिमिलरिटीज है. जैसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हमने जो अम्ब्रेला बनाया है, उनके मैनेजमेंट में बहुत सारी सिमिलरिटीज है. इसीलिए प्राइमरी केयर सेटिंग में इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसानी से किया जा सकता है. जब ट्रीटमेंट एक तरह का ही हो, आप आसानी से उसको डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं. तो दैट इज वाई इसका अडेप्टेशन जो प्राइमरी केयर में हुआ है, इट इज बीन वेरी सिंप्लीफाइड. कैसे किया जा सकता है आपके जनरल प्रैक्टिस में? तो आपका सब लोगों को मालूम है कि बहुत 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 बिजी क्लिनिक होता है, लोग बहुत सारे कंप्लेंट से आते हैं, कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है. तो जरूरी है कि जल्दी से जल्दी, वेरी क्विकली इट नीड्स टू बी स्क्रीन एंड एक्यूरेटली इट नीड्स टू बी स्क्रीन्ड. देन क्या नहीं करना चाहिए? यू डोंट हैव टू सिट एंड टॉक एंड डू ए फुल लेंथ साइकेट्रिक क्लिनिकल इंटरव्यू अपने. तो आप बैठ के पूरा का पूरा हिस्ट्री लेके पूरा डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है. जो भी आपको क्लिनिकल स्केड्यूल ऑफ साइकेट्री दिया गया है, उसी के अंदर जो भी दिया गया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं. और दैट इज व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द पेशेंट एट द प्राइमरी केयर लेवल. तो जैसे हर एक का है, ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं केस को, कि उनका सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट के साथ आते हैं उनका नाम पूछिए, उनका उम्र पूछिए और क्या कंप्लेंट से आए हैं उसके बारे में पूछिए. फिर रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन जो हर दिन आप करते हैं उसको करिए. फिर अगर आप देखते हैं तो आपके प्रोफार्मा में उसमें है कि अगर कोई आया है कोई कंप्लेंट से, कितने दिन से वो सिम्टम्स है, उनको सिम्टम्स फ्रॉम हाउ मेनी डेज ऑफ ड्यूरेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कुछ मालूम होता है उस सिम्टम्स से. अगर ये सिम्टम्स जो पेशेंट बता रहे हैं आपको, कैन दीज सिम्टम्स बी एक्सप्लेन बाय एनी नॉन मेडिकल इलनेस? अगर कोई मेडिकल इलनेस से इस सिम्टम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनका जो भी डायग्नोसिस बनाना है बना दीजिए और उनको ट्रीटमेंट जो देना है, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए. अगर ये सिम्टम्स अगर आप मेडिकल इलनेस से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए कि अगर इनका सिम्टम्स है 2 हफ्ते के अंदर, इफ इट इज लेस देन 2 वीक्स, ट्राई टू reassure द पेशेंट. पेशेंट को बताइए कि घबराने की जरूरत नहीं है. अगर सिम्टम्स ऐसे ही रहते हैं तो फिर से वापस आने के लिए फॉलो अप के लिए 2 हफ्ते के बाद. इफ द सिम्टम्स हैव बीन मोर देन फॉर 2 वीक्स, अगर ये सिम्टम्स जो है वो 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम से है, तो फिर आपको जनरल स्क्रीनिंग क्वेश्चनर के जो भी क्वेश्चन है पूछना है. जैसे कि उनका नींद कैसा है, हाउ वाज देयर स्लीप, हाउ इज देयर एपेटाइट एंड हाउ इज देयर इंटरेस्ट इन डूइंग डेली वर्क.
तो आप उनका नींद कैसा है, उनका खाना ठीक से है नहीं है, और उनका हर दिन का जो भी काम करने में मन है, काम कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर इफ दीज थिंग्स आर नॉर्मल देन ओके, इफ दे आर डिस्टर्ब देन वी माइट हैव टू लुक इनटू सम अदर थिंग्स। जैसे कि ये डिस्टर्ब है तो फिर उनके सिम्टम्स के हिसाब से आपको स्क्रीनर के जो भी स्क्रीनिंग क्वेश्चंस है उसके ऊपर जाना है। सो हाउ वी विल प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन इज, एक केस सिनेरियो लेके उस केस सिनेरियो का कैसे हम इस सीएसपी मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज दिस सीएसपी मैनुअल व्हेन समबडी कम्स विद सर्टेन सिम्टम्स, ये हम देखेंगे केसेस के हिसाब से। देन यू कैन सी कि हाउ इट कैन बी यूटिलाइज इन योर पीएचसी लेवल इटसेल्फ। तो देखिए एक पहला केस है, 55-year-old मैन coming to a PHC with history of 2 months of lack of energy, multiple body pains and aches। ऐसे कोई आपके PHC में आया है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक इज कि कैन दिस अबव साइन एंड सिम्टम्स बी एक्सप्लेन बाय मेडिकल इलनेस। अगर होता है आपके जांच में कोई मेडिकल इलनेस आता है तो ठीक है, नहीं तो जनरल इंक्वायरी, जैसे हमने बोला है नींद कैसा है और उनका खाना पीना ठीक है नहीं है, फिर काम कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, देन यू गो टू स्पेसिफिक स्क्रीनर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इसमें जो हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं कि इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम। जैसे कि पिछले थोड़े हफ्ते में आपको बहुत थकान हो रहा है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव यू लॉस्ट इंटरेस्ट और प्लेजर इन योर रेगुलर डेली एक्टिविटीज, जो दिन के काम काज में आपको इंटरेस्ट चला गया है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव यू बीन फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, तो पिछले थोड़े हफ्ते में आपको बहुत मन उदास होता है, आपको बहुत उदासीपन लगता है क्या? तो ये 3 क्वेश्चन आप फट से पूछ सकते हैं उनको। अगर इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको लगा कि कोई बोला हाँ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अभी स्क्रीनिंग में आपको एक सिम्पटम मिला है कि देखिए कि ये थकान है, कि बॉडी पेन्स है और लैक ऑफ एनर्जी है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो स्क्रीनिंग में आपको मिला है कि थकान है, लैक ऑफ एनर्जी है, फीलिंग सैड है। फिर अभी आप जाइए स्क्रीनिंग से डायग्नोस्टिक, ठीक है? तो अगले पेज में आप देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस क्या है। द डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस हैव बीन मेड, बनाया गया है सिम्पटम्स और साइंस के मिला के। तो अगर कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे कि थायराइड है, कार्डियक प्रॉब्लम है, एनीमिया है, ये सारे मेडिकल इलनेस साइकियाट्रिक इलनेस को मिमिक कर सकता है। जैसे कि थायराइड में है तो बेचैनी ज्यादा होता है लोगों को, कार्डियक इलनेस है तो लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हालांकि कुछ और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में ऐसे हो सकता है। एनीमिया है तो भी ऐसे पाल्पिटेशन, धड़कन तेज होना ऐसे हो सकते हैं। तो पहले आपको मेडिकल कंडीशंस रूल आउट करना है जो हर दिन कर रहे हैं, आपने क्लिनिक में आप वही कर रहे हैं इतने सालों से, तो वो करते रहना चाहिए। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रीनिंग में आपको एक मालूम हो गया है कि ये डिप्रेशन जैसा लग रहा है, स्क्रीनिंग में एक टिक आपको मिल गया है, तो आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आइए। ये देख सकते हैं कि कोर सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के। 3 सिम्टम है कोर सिम्टम, एक है डिप्रेस्ड मूड, दूसरा है एनर्जी लेवल व्हिच इज डिक्रीज्ड, और इंक्रीज फटीग और टायर्डनेस, थकान होना, नहीं तो एनर्जी कम हो जाना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मतलब जैसे पहले इंटरेस्ट था, जो भी लोगों को पसंद आता है, वो पसंदी जो चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट खो जाना अभी। तो एटलीस्ट 2 or more ऑफ दिस कोर सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट। जैसे आप स्क्रीनर में देखे हैं उसमें थे ये 3 क्वेश्चन, तो इसमें 2 से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम 2 रहना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ सिम्पटम्स है जिसे हम बोलते हैं एडिशनल सिम्पटम्स। वो क्या है हम देखेंगे अभी। ये देख सकते हैं एडिशनल सिम्पटम्स। अगर उसमें अगर देखिए कि उदासीपन है, थकान हो रहा है, कोई चीज करने में इंटरेस्ट नहीं है अभी, तो उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकते हैं उसके साथ में, कि आप पूछ सकते हैं नींद कैसा है, डिस्टर्ब स्लीप है, डिस्टर्ब एपेटाइट, खाने का मन नहीं है, खाना हजम नहीं होता है, खाने का इंटरेस्ट ही चला गया है, डिक्रीज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, काम करते वक्त दिमाग काम नहीं करता है, अटेंशन ही नहीं है, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल और थिंकिंग लेवल, काम करने का एक्टिविटी लेवल जो भी है, एनर्जी कम हो गया है, डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, मुझे मुझसे कोई उम्मीद नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है इस दौरान कम हो जाता है।
आइडियाज और एक्ट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड। तो लोगों को लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है और लगता है कि खुदकुशी कर ले। ओके, तो उनको दिमाग में ख्याल आता है कि जीना बेकार है, मुझे मरना चाहिए। आइडियाज ऑफ गिल्ट और अनवर्थीनेस कि मैं किसी का काम का नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, मैं बोझ हूँ किसी को ऊपर। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में आते रहते हैं। ब्लीक एंड नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर को, मेरा आगे का जिंदगी ही नहीं है, तो क्यों मैं जी रहा हूँ अगर मुझे जिंदगी दिख नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या है मेरे लिए, तो इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। फिर वेट लॉस कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस, तो ऐसे वेट लॉस को देखने का एक तरीका है कि उनके जो कपड़े हैं वो लूज हो जाते हैं, तो उससे हमें मालूम होता है कि वेट लॉस हुआ है नहीं हुआ है। तो वो कोर सिम्टम्स जो है, वो 3 कोर सिम्टम्स, ये एडिशनल सिम्टम्स। तो हमें डिप्रेशन का डायग्नोसिस करने के लिए एटलीस्ट 2 कोर सिम्टम्स रहना चाहिए, जो हमने पहले बताया था, और इन 10 सिम्पटम में, एडिशनल सिम्पटम में 3 सिम्पटम रहना चाहिए। तो ये 2 कोर सिम्पटम और ये 3 एडिशनल सिम्पटम अगर है परसिस्टेंटली एंड परवेसिवली फॉर 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते के लिए ये लगातार ऐसे सिम्पटम्स है, तो हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं अभी डिप्रेशन का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कॉमन मेंटल इलनेस के अंदर फर्स्ट है ए प्रिडोमिनेंटली डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसके ज़रिए हम अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस किया है। तो एक बार अभी हमने डायग्नोसिस किया है, फिर आगे क्या करना है? नेक्स्ट होगा इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है, तो कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे हम बोल रहे थे कि थोड़ा मेडिकल कंडीशन रूल आउट कर सकते हैं, जो बहुत साधारण तौर से कोमॉर्बिड है डिप्रेशन से, तो एक थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं आप, टीएसएच, और एक ईसीजी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम दवा देने वाले हैं, तो इसीलिए एक ईसीजी करके देख सकते हैं कि टू रूल आउट एनी अदर कॉजेस। सीटी, एमआरआई जैसे कोई चीज़ हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। अगर कोई पेशेंट पूछता है कि सर मुझे सर का स्कैन चाहिए, तो अगर आप डिप्रेशन का डायग्नोस किए हैं सिम्पटम के और मैनुअल के हिसाब से, आप उनको बोल सकते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है आपको सीटी, एमआरआई, लगता है कि ये डिप्रेशन है, तो और इसका इलाज हम कर सकते हैं दवाइयों के ज़रिए से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा कि अब डायग्नोस किया है, तो फिर ट्रीटमेंट देना है। तो ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? ट्रीटमेंट में एक तो अभी आपको देना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें लिखना पड़ेगा दवाई। उसके साथ-साथ थोड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर उसके साथ कब आना है वापस पेशेंट आपके साथ, सो फ़ॉलो-अप का कर सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन, काउंसलिंग, फ़ॉलो-अप डेट और फ़ॉलो-अप नोट्स, ये होगा आपका ट्रीटमेंट प्लान में, इंक्लूड करना चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन लिए एक टेम्पलेट बनाया है उस मैनुअल में, तो आप देख सकते हैं उस टेम्पलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है टेम्पलेट के हिसाब से। तो हमने डायग्नोस किया है प्रेडोमिनेंटली डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? लिखा है एसएसआरआई, जो है साइकोट्रोपिक मेडिकेशन, फिर बेंजोडाइज़ेपिन, फिर उसके साथ-साथ काउंसलिंग भी दे सकते हैं, और कितने देर तक देना है, कितने दिन तक देना है। तो आप बोल सकते हैं कि 9 से 12 महीने तक, तो 1 साल तक ये ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा। ओके? तो एक जनरल गाइडलाइन है, जब भी हम साइकियाट्रिक दवाई देते हैं, तो लोगों को काउंसलिंग में नहीं तो लोगों को क्या बताना चाहिए? ये एक बताना चाहिए कि जब भी दवाई देते हैं, उसका असर आने में द एक्शन इज़ वेरी स्लो, तो उसका असर आने में कम से कम 2 हफ्ता लगता है, और पूरा असर होने में कम से कम 4 से 6 हफ्ता लग सकता है। तो ये आप अगर आप बताएँगे, तो पेशेंट इमीडिएटली आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि दवा दिया है तो 1-2 दिन में बेहतर होना है। नहीं, आप पहले ही बोल के रखेंगे उनको कि उसका असर देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंट भी वेट करेंगे और वापस आपके पास आके, और उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि ये मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले हम उनको बताना चाहिए दवा के बारे में, कितना टाइम लग सकता है और कब वो लोग वापस हमारे पास आए। अगर इम्प्रूवमेंट है तो कैसे रहेगा, नहीं है तो क्या करना चाहिए, ठीक है? और फिर अगर इम्प्रूवमेंट होता है, तो मेडिसिन को कंटिन्यू जारी रखना चाहिए और उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी वजह से मेडिसिन को अचानक अब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए। इन केस अगर कोई साइड इफेक्ट, सीवियर साइड इफेक्ट होता है, तभी बंद करना चाहिए, नहीं तो इन इस तरह के मेडिकेशन को अब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए। ये उनको बोलना चाहिए एज़ अ जनरल रूल,
कभी भी जब भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो अभी हम प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट के पास आए हैं। फिर ये दे सकते हैं कि क्या देना है प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट में डिप्रेशन के लिए। आप देख सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो पहला आप बॉक्स में देख सकते हैं टैबलेट फ्लोक्सिटिन, जैसे एसएसआर है वो बताया है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उस क्लास के ड्रग्स है फ्लोक्सिटिन। तो फ्लोक्सिटिन को आप स्टार्ट कर सकते हैं 20 mg से। तो जब हमने डायग्नोस किया है एक डिप्रेशन का केस को, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। एक फ्लोक्सिटिन 20 मिलीग्राम सुबह में एक दे सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने बोला है थोड़ा टाइम लगता है उसका असर आने में, तो उसके साथ साथ हम देते हैं बेंजोडाइजेपिन जो है क्लोनाजिपाम 0.25 मिलीग्राम, ताकि पेशेंट को थोड़ा राहत मिले, नींद थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ा बेचैनी बेहतर हो जाए, थोड़ा उदासीपन थोड़ा बेहतर हो जाए। तो उसके लिए, और अगर क्लोनाजिपाम नहीं होता है तो डायजिपाम 5 mg आप दे सकते हैं रात में एक 10 दिन के लिए। उसके बाद उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एसएसआर है फ्लोक्सिटिन का असर है वो चालू हो जाएगा तब तक। हम मानते हैं कि डायज़ेपाम से बेहतर आप क्लोनाज़ेपाम अगर आपके साथ मिलता है तो वो दे सकते हैं इसके साथ-साथ। अगर ये नहीं है, फ्लॉक्सिटिन नहीं है, तो और क्या से दे सकते हैं? तो दूसरा है टैबलेट एसिटोलोप्राम, वो भी एसएसआरआई है, उसको भी आप 10 mg रात में शुरू कर सकते हैं पेशेंट के लिए। उसके साथ-साथ जैसे हमने बोला है क्लोनाज़ेपाम 0.25 mg और डायज़ेपाम नहीं तो डायज़ेपाम दे सकते हैं। ये दोनों भी नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? फिर है लास्ट ऑप्शन, अगर ये दोनों नहीं है तो एमिट्रिप्लिन दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों अगर देंगे तो बहुत बेहतर है। फिर उसके बाद ये तो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन का कि क्या देना है पेशेंट को अगर डिप्रेशन डायग्नोस होता है। उसके साथ-साथ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद ब्रीफ काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब थोड़ा क्या बोलना है पेशेंट के साथ, वो भी कम से कम ओनली 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट्स इज़ प्रेफरेबल। ये उसमें क्या रहना चाहिए आपके काउंसलिंग में? काउंसलिंग में रहना चाहिए कि ये बीमारी के बारे में एजुकेशन, एजुकेशन अबाउट इलनेस, जैसे कि उनको बोलना है कि आपको ये डिप्रेशन है, ओके? तो उदासीपन है आपको, तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आपको 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी ये ट्रीटमेंट है स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप बेहतर भी होते हैं तो लगातार 6 महीने तक कंटिन्यू करना है और बीच में रोकना नहीं है। कब फॉलो करना है? फ़ॉलो अप करना है आपको इतने देर का, 2 हफ्ते के बाद आना है, फिर और 2 हफ्ते बाद, फिर मंथली-मंथली आना ऐसे। और स्ट्रेसर जो भी अब ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन से पहले कुछ स्ट्रेस होता है, तो आप उनको थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया जाए। जैसे कि थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर अब डिस्ट्रैक्शन टेक्निक बोल सकते हैं। थोड़ा नींद के लिए स्लीप टेक्निक, जैसे कि टाइम पे सो कुछ लोग होते हैं जो रात में देर सोते हैं, फिर लगता है कि उन नींद का परेशानी भी ज़्यादा हो गया है। तो उनको बोल सकते हैं कि दवा ले रहे हैं तो ठीक समय पे सोए और ठीक समय पे उठे और खाना ठीक से खाएँ। तो ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स 5 मिनट्स के अंदर उनको ये क्या प्रॉब्लम है उनका, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट कब तक लेना है, बस इतना आप बोल सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप सुने होंगे कि थेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी, थेरेपी। ये साइकोथेरेपी जो है, ये स्पेशलिस्ट जो ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वो लोग करते हैं। वो एक स्पेशलाइज़्ड काउंसलिंग है, जो सिम्पटम्स को कम करने के लिए बहुत सारे सेशन लेते हैं। एक-एक सेशन कम से कम 1 घंटा तक, 40 मिनट से 1 घंटा तक लेते हैं। तो ये काउंसलिंग और साइकोथेरेपी को आप कन्फ्यूज़ मत करिए। हम जो कर रहे हैं ब्रीफ काउंसलिंग है पेशेंट को, और वो भी 5 मिनट के अंदर अपने क्लिनिक में जितना टाइम मिलता है, उसके अंदर ब्रीफ जो पेशेंट को ज़रूरी है उतना ही हम बता रहे हैं, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये है काउंसलिंग के बारे में। फिर अभी आपने डायग्नोज़ किया है, फिर एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, उनको बोला है कि भाई आप ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं, ये गोली आपको सुबह में नहीं तो रात में ये लेना है, उसके साथ में लेना है। फिर वो पूछा सर कब आना है आपको? तो फ़ॉलो-अप कैसे करना है? तो पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ फ़ॉलो-अप देखिए आप, फर्स्ट फ़ॉलो-अप हम करेंगे 2 हफ्ते के बाद। देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट है, नहीं है। जो हमने मेडिसिन दिया है, उसका साइड इफ़ेक्ट है, नहीं तो कुछ हुआ है उसके देखने के लिए। फिर सेकंड फ़ॉलो अप करते हैं 4 वीक्स के बाद टू सी द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन, कि जैसे हमने बोला है पूरा इफेक्ट आने में कम से कम 4 हफ्ता लगता है, तो वी विल बी एबल टू नो कि कितना बेनिफिट हुआ है हमने जो मेडिसिन दिया है उस डोज़ पे।
फिर उसके बाद मंथली मंथली हर एक महीने को उनको मेंटेनेंस के बुलाएंगे, क्योंकि हमने बोला था उनको 6 महीने तक जार उसको लगातार कंटिन्यू करते रहना है। तो महीने-महीने हम देखेंगे कि कोई और नया प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो कैसे है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है? तो फ़ॉलो-अप में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फ़ॉलो-अप में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब आप पहले आए थे, पिछले विज़िट से कंपेयर करते हैं, अभी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? हैव यू इम्प्रूव्ड व्हेन कंपेयर्ड टू द अर्लियर विज़िट? अगर बोलते हैं कि हाँ, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, येस वी हैव सम इम्प्रूवमेंट, तो वी कैन आस्क हाउ मच ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इज़ देयर इन अ परसेंटेज ऑफ ₹1? ₹1 में कितना प्रतिशत आपको इम्प्रूवमेंट लगा है अपने आप के हिसाब से? तो अगर पेशेंट नहीं तो घर वाले बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट 50% से कम है, तो 50% से तो कम है, तो आप नेक्स्ट क्या करना है, आप थोड़ा और डोज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए डोज़ अभी उतना ज़्यादा नहीं था, तो वी कैन स्टिल गो अप ऑन डोज़। तो उनको थोड़ा डोज़ बढ़ा सकते हैं और फिर 2 हफ्ते के बाद बुला सकते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट 50% से ज़्यादा है, दैट मीन्स ठीक दवाई काम करना शुरू हो गया है, वी आर एबल टू सी द इम्प्रूवमेंट, सो आस्क टू कंटिन्यू द सेम डोज। तो वही डोज पे आप उसको रखिए और फिर 2 हफ्ते के बाद उनको बुलाइए, ताकि आप देख सके और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर मेंटेन कर सकते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसे आपने दवाई दिया था वैसा ही है, इससे भी और खराब हो गया है, तो पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जैसे हमने प्रिस्क्राइब किया है उनको दवाई, द वे वी हैव प्रिस्क्राइब्ड, आर दे टेकिंग इन द राइट वे और नॉट? हम जैसे बोले वैसे ले रहे हैं, नहीं तो दवाई में कुछ गड़बड़ किया है, पहले वो देखना चाहिए हमें। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ये गोली ऐसे दिया था, सुबह वाला रात दिया था, नहीं तो छूट गया था, तो उनको बोलना है कि ये हर दिन देना है, जैसे हमने बोला है वैसे देना है, और फिर उनको ये समझा के फिर उनको वापस बुला सकते हैं। अगर इफ दे आर टेकिंग इन द राइट वे हाउ वी हैव प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर इसका मतलब है कि रिस्पांस नहीं आ रहा है, इट इज बेटर टू रेफर टू अ साइकियाट्रिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो उस टाइम में हम साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं इम्प्रूवमेंट वो नहीं आया है, हमने वेट किया 2 हफ्ते के बाद, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मे बी देयर आर सम अदर फैक्टर्स, सो इट इज बेटर फॉर अस टू रेफर टू अ साइकियाट्रिस्ट सो दैट इट कैन बी डेल्ट, वहाँ वो लोग देख सकते हैं। तो ये है डिप्रेशन के बारे में। सो इफ यू कैन समराइज एट वंस, तो ये है कि आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आपके क्लिनिक में आता है, कोई कंप्लेंट्स है, तो पहले आपको देखना चाहिए कि ये कंप्लेंट्स कोई मेडिकल इलनेस से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर आपको जनरल कंप्लेंट्स पूछना है कि नींद कैसा है और उनका खाना कैसा है, फिर उनका इंटरेस्ट कैसा है काम करने में, नहीं काम कर पा रहे, नहीं कर रहे। उसके बाद स्पेसिफिक जो स्क्रीनर में क्वेश्चन है, आपके कंप्लेंट्स के हिसाब के थकान हो रहा है, तो आप देख सकते हैं थकान के साथ-साथ क्या सिम्पटम्स है डिप्रेशन के लिए, वो पूछ सकते हैं। 1 या 2 सिम्पटम बोला है, तो फिर डायग्नोसिस में जाइए और फिर पूरा का पूरा जो भी है वो पूछ लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि क्या-क्या सिम्पटम्स हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको। फिर आपको एक बार 2 कोर सिम्पटम्स, उसके साथ-साथ 3 एडिशनल सिम्पटम्स मिल गए हैं और 2 हफ्ते से लगातार ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो फिर आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना सकते हैं उनको। फिर अभी उनको ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, तो आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, एसएसआरआई, बेंजोडाइजिपिन और काउंसलिंग। तो फिर आप टेम्पलेट में जा सकते हैं, देखते हैं कौन सा आपके पास है एसएसआरआई, फ्लॉक्सेटिन, नहीं तो एस्टेलोप्राम, क्लोनाजिपम, नहीं तो डायज़ेपम, जो भी है वो टेम्पलेट के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रीफ काउंसलिंग जो हमने बोला है कि उनके प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन है आपको, कि इतना दिन तक आपको मेडिसिन लेना है, टाइम लगेगा, आप वापस इतने टाइम में आइए, कोई साइड इफेक्ट आता है तो बंद करके हमारे पास आइए, अपने आप से मत बंद करिए, अगर अच्छा लगता है तो, ये बताएँगे और फिर उनको भेजेंगे और 2 हफ्ते के बाद बुलाएँगे। ये रहेगा डिप्रेशन का ब्रीफली, ये मैनुअल में जो दिया है, अगर ये फ़ॉलो अप कर पाएँगे, तो आप फट से डायग्नोज़ करेंगे और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सिम्प्लीफाइड है ये, और आप जब स्टार्ट करेंगे, तो आसानी हो जाएगा आपको। ये है डिप्रेशन का, ठीक है? तो अगर आप किसी को कुछ बोलना है, तो कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे जाएँगे दूसरे डिसऑर्डर पे।
कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट, जो भी मन में आए पूछ लीजिए डॉक्टर साहब, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, जब हाँ, तक नहीं अगर पूछेंगे तब तक। हाँ हाँ, जी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए ताकि हमें भी मालूम हो कि आपके मन में ये चल रहा है, तो हम यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अभी और नहीं तो पूरा प्रेजेंटेशन के बाद भी पूछ सकते हैं आप। आपको पूछने में थोड़ा दिक्कत लग रही है तो चैट बॉक्स में मेरा नाम पे क्वेश्चन भेज दीजिए, आपका नाम नहीं बताएंगे, आंसर बता देंगे हम लोग। हाँ, चैट पे भी आप इट इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, हम आगे चलेंगे फिर। हाँ, सो हमने अभी डिप्रेशन के बारे में बातचीत किया है, तो नेक्स्ट है सीएमडी में जैसे हमने बात किया था, तो आपके ये केस है, आप देख लीजिए। 40-year-old woman has been coming to PHC with a history of 1 year of tingling sensation over scalp, headache, acidity, gas or pain in the limbs and neck. मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ऐसे केसेस आप बहुत सारे देखे होंगे पीएचसी में कि लोग बहुत बार आते रहते हैं कि मुझे हाथ में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, माथा में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, और जितना भी आप उनको पेन किलर दे रहे हैं, वापस हर बार आते रहते हैं और वही सिम्टम बोलते रहते हैं कि मुझे वहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। हालाँकि आप जितना टेस्ट कराए हैं, जितना भी आपको बोले, वो लोग सुनते नहीं हैं और बोलते हैं कि मेरा परेशानी कम नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से टिंगलिंग सेंसेशन है और हेडेक है, एसिडिटी है, पेन है, ये सब है। तो जैसे हमने पहले बोला था, ये कोई मेडिकल इलनेस से आप अपने जाँच में अगर कोई मेडिकल इलनेस से ये एक्सप्लेन केस कर सकते हैं, तो उस मेडिकल इलनेस के हिसाब से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन बाय एनी मेडिकल इलनेस, देन गो फॉर जनरल इंक्वायरी। उनसे पूछिए कि कैसा है, नींद कैसा है, काम में कोई दिक्कत हो रहा है, पूछिए। फिर उसके बाद कि स्क्रीनिंग में, आपके स्क्रीनिंग में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है आपके स्क्रीनर में इसके लिए है। आप देख सकते हैं, इन द पास्ट मेनी मंथ्स डज दिस पेशेंट हैव एनी फिजिकल सिम्पटम्स लिस्टेड इन द सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर which is unexplainable with current medical knowledge or with depression or anxiety. पिछले कई महीनों से बहुत सारे ऐसे फिजिकल सिम्टम्स है जो कोई मेडिकल इलनेस से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आप, नहीं तो कोई डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम्स है क्या? नहीं तो कई पिछले महीनों से इन द पास्ट फ्यू मेनी मंथ्स डज दिस पेशेंट शो signs of doctor shopping, that is repeatedly consulting doctors, either you or many other doctors, for the same physical symptoms. तो पिछले कई महीनों से डॉक्टर शॉपिंग कर रहा है, डॉक्टर के पास बार बार जा रहा है, एक डॉक्टर फिर वो दूसरे डॉक्टर फिर तीसरा डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर के पास जाए उनका प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है और उनका प्रॉब्लम वैसे ही है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास है, मैं मेरा कोई कुछ नहीं हो रहा है और ऐसे ही दर्द है, ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो आपको मेडिकल इलनेस नहीं लग रहा है, तो इसमें आपको कोई ऐसा मिल गया है, तो नेक्स्ट आपको मेडिकल इलनेस उलट किया है, थायराइड, कार्डियक ऐसे कुछ है। फिर आपको स्क्रीनिंग में डॉक्टर शॉपिंग दिखा है कि बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स है। तो नेक्स्ट आपको डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस देखना है और देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस क्या है। फिजिकल कंप्लेंट्स विथआउट अ फिजिकल एक्सप्लेनेशन डिटरमाइन्ड बाय अ फुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कोई बहुत सारे कंप्लेंट्स बता रहे हैं, लेकिन आपने फुल हिस्ट्री लिया है और एग्जामिनेशन किया है, जो आपके एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ये कंप्लेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। कंप्लेंट्स है लेकिन उसका आपके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सिंगल, मल्टीपल और वेरिएबल फिजिकल सिम्टम्स रेफर टू एनी पार्ट और सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे कि एक नहीं तो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स है, एक सिस्टम जैसे कि हम देख रहे थे एसिडिटी है, नहीं तो ब्लोटिंग होता है, नहीं तो कोई पेट में बहुत अजीब सा होता है, टाइटनेस होता है, ऐसे एक सिस्टम नहीं तो 2-4 सिस्टम जैसे कि टिंगलिंग नमनेस होता है, ब्लोटिंग होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, गर्दन में पेन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम के सिम्पटम्स हैं। कॉमन सिम्पटम्स क्या हो सकता है? जैसे हम बोल रहे हैं पेन, पेन एट मल्टीपल साइड्स, एब्डोमिनल, बैक, चेस्ट, डिस्मेनोरिया,
डिस्यूरिया, एक्सट्रीमिटीज, हेड हो, तो ऐसे पेन इज अ कॉमन सिम्टम। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स जैसे कि पेन हो, बेल्चिंग, रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग, नॉजिया, इस तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन जैसे हम बोले इचिंग होता है, बर्निंग होता है, टिंगलिंग, नमनेस, सोरनेस, इस तरह के एबनॉर्मल स्किन सेंसेशंस जो है वो बताते हैं। और सेक्सुअल और मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रेगनेंसी में उल्टिया, हाइपरएमएसएस हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरेजिया और सेक्सुअल इंडिफरेंस, इस तरह के कंप्लेंट्स भी कुछ लोग बता सकते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कॉमन में। डायग्नोसिस करने के लिए क्या चाहिए? तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस करने के लिए सोमाटाइजेशन का क्या चाहिए? सिम्टम्स ऑफ द इलनेस प्रेजेंट फॉर मेनी मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ द सिम्टम्स व्हिच वी हैव एक्सप्लेन्ड अबव। अभी हमने जो सिम्टम्स बताया है वो एटलीस्ट 6 महीने तक रहना चाहिए। दूसरा है डॉक्टर शॉपिंग, रिपीटेड विजिट टू डॉक्टर्स और रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन रिवील्स नो अबनॉर्मलिटी, जैसे कि एक डॉक्टर के पास बार-बार जा रहा है। दूसरा है कि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में कोई खराबी नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, मेरा इधर-उधर दर्द ऐसा ही है। तो ये लोग फिर बाहर इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि मुझे दर्द होता ही होता है। तो इसके साथ-साथ सम डिग्री ऑफ सोशल एंड फैमिली डिसफंक्शन, कि काम-काज में दिक्कत होना, तो घर में दिक्कत होना, फैमिली में दिक्कत होना, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी काम करना है, बाहर जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, तो काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम होना। अगर ये है, तो हम डायग्नोसिस ऑफ सोमाटाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि जो सिम्पटम्स जो हमने बताया है, पेन का जो मल्टीपल सिम्पटम्स, वो पेन नहीं तो जीआई सिम्पटम्स और एब्नॉर्मल स्किन सेंसेशंस, वो सिम्पटम्स 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 महीने रहना है। उसके साथ-साथ डॉक्टर शॉपिंग करते रहना है, उसके साथ थोड़ा बहुत काम-काज में दिक्कत होना है। अगर ये सब चीज़ें हैं, तो हम सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके डायग्नोसिस का जो मैनुअल में दिया गया है, देख सकते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में सी प्रिडोमिनेंटली सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है? तो अभी अब देखिए कि आए हैं, तो जनरल इंक्वायरी किया है, स्क्रीनिंग में देखे है कि कुछ मिला है आपको डॉक्टर शॉपिंग, डायग्नोसिस किया है, तो डायग्नोसिस मिला है आपको सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। अभी फिर आपको जाना है ट्रीटमेंट करने के लिए। अब डायग्नोसिस हो गया है तो ट्रीटमेंट नेक्स्ट, तो ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? सेम वही ट्रीटमेंट गाइडलाइन में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में फिर से आप देख सकते हैं सीएनबी के अंदर सी प्रिडोमिनेंटली सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो हाइलाइट किया है टीसी है, इसका नाम है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसी है और काउंसलिंग कर सकते हैं। अब दूसरा एक देखिए प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसके लिए थोड़ा लंबा है, 2 साल तक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बीच में रोक देते हो फिर से इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं और पेशेंट वापस बार-बार आता है, पूरा रेमिशन जो भी मतलब पूरा का पूरा सिम्पटम रिलीफ नहीं होता है, तो उनको बता देना चाहिए कि थोड़ा देर तक आपको लंबा ट्रीटमेंट जारी रहेगा, लेकिन असर होगा उसका, ठीक है? तो ये है ट्रीटमेंट का, आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है क्या ट्रीटमेंट देना है, टेम्पलेट में आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। तो जैसे हमने बोला टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो है अमिट्रिप्टिलिन। तो टैबलेट अमिट्रिप्टिलिन जो है 25 एमजी देना है। कैसे स्टार्ट करना है? आधा टैबलेट देना है पहले 4 दिन के लिए, उसके बाद 4 दिन के बाद रात में और उसको 1 करना है, बढ़ाना है और 4 दिन के लिए देना है। उसके बाद फिर रात में 25 एमजी का 2 टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है? 2 टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला है जनरल लाइक गाइडलाइंस, कि जनरल गाइडलाइंस क्या होता है? जब भी आप गोली स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आपको बताना चाहिए कि इसका असर आने में कम से कम 1 से 2 हफ्ता लग सकता है और फिर उसके साथ अब कब वापस आना है और क्या बीमारी है। तो काउंसलिंग में क्या करना है, कब असर होगा उनका, कि जैसे 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते में, फिर पूरा असर होगा, 4 हफ्ते तक पूरा असर होगा। फिर उनको 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद बुलाना है फ़ॉलो अप के लिए, देखना है कोई साइड इफ़ेक्ट है, नहीं है और उसका इफ़ेक्ट कैसा है। जैसे हमने बोला है फ़ॉलो अप कैसे करना है। देखिए आने के बाद जब पहले आए थे उससे कुछ बेहतर हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है तो कितना प्रतिशत ₹1 में इम्प्रूवमेंट हुआ है?
अगर 50% से कम है तो डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और 50% से ज्यादा है तो डोज उसी डोज पे रख के फिर 2 हफ्ते के बाद बुला सकते हैं। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर उनको आप रेफर कर सकते हैं दूसरे साइकियाट्रिस्ट के लिए। तो इसके साथ-साथ आपको क्या करना है? दूसरा है, जैसे हमने बोला है, ब्रीफ काउंसलिंग 5 मिनट के अंदर उनको बोलना है कि आपको सोमेटाइजेशन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने ये गोली स्टार्ट किया है, ये गोली इतना डोज़ हम चालू रखेंगे, और आपको बेहतर होता भी, आपको पूरा बेहतर लगता है तो भी आपको कम से कम 1 से 2 साल तक इसको ज़रूर कंटिन्यू करते रहना चाहिए और बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वापस आके डॉक्टर को बताना है, ताकि हम उसको कुछ देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो ये होगा अपना सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का, कि कोई आएगा तो कैसे स्क्रीन करना है, कैसे डायग्नोस करना है, और ट्रीटमेंट कैसे अपने टेम्पलेट के हिसाब से देना है। आप देख सकते हैं स्क्रीनर क्वेश्चन नंबर 15-16, फिर डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस में जा सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट टेम्पलेट जो भी है वो टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं, फिर उसके बाद फॉलोअप का आप देख सकते हैं। ये है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट हम जाएँगे एंग्जायटी डिसऑर्डर। इससे पहले, जाने से पहले अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं फिर से तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, वन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन डॉक्टर जसदीप ने पूछा था, सम पेशेंट्स आर नॉट विलिंग फॉर मेडिकेशन, हाउ टू कन्विंस देम। एक्चुअली क्वेश्चन में ये आंसर है, सम पेशेंट्स आर नॉट विलिंग फॉर मेडिकेशन। हम लोग सम पेशेंट के लिए काम नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट के लिए काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सम पेशेंट्स के लिए ज्यादा समय चाहिए, लेकिन उतना समय हम लोगों का पास नहीं रहता है। उनसे सिर्फ इतना बोलना है, मेरा असेसमेंट में आपको दवाई का जरूरत है। आपको अभी नहीं लग रहा है तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको कभी भी आपको लगा कि दवाई का मैं जो बोला हूँ सही है, आप फिर भी आ सकते हैं, जब भी आ सकते हैं, तो इतना बोल के भेज देना है। दिस द बेस्ट थिंग। एंड और दूसरे डॉक्टर चरणप्रीत सिंह ने पूछा है, साइकियाट्रिस्ट CH Moragamabad, please include all those who have applied for in that new group so that they will be online. पता नहीं क्या बोल, please include all those who have applied for in that new group so that they will be online on time. और डॉक्टर अजबीर कौर पूछिए, for proving cases, actually जो 6 month है, which patient should be there, minimum बोला, ideally it should be 9 months to 1 year, ठीक है? तो 6 मंथ इसलिए बोला कि आप लोगों को एटीटी देके आपको मालूम है 6 महीने दवाई देके, और एक एटीटी का 6 महीना मालूम है, दूसरा डायबिटिक और हाइपरटेंशन का जिंदगी भर मालूम है, देना के लिए तो मालूम रहता है। ये 2 चीज बोलते हैं हम लोग, है ना? 3 तरह का प्रैक्टिस होता है, एक तो एंटीबायोटिक 2-3 दिन का है, 2-3 दिन का है, और 6 महीने का एटीटी है, जिंदगी भर वाला डायबिटिक हाइपरटेंशन है, ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी हम दिमाग में रख के आप लोगों को मैनुअल बनाया है। तो 6 मंथ आप मिनिमम बोल दीजिए, उसके बाद जब पेशेंट को इंप्रूवमेंट लगेगा, जब 6 मंथ आएगा तो उनको बोलना है कि 6, आइडियली 9 to 12 मंथ चलेगा। इफ यू रियली वांट, 6 मंथ के बाद धीरे धीरे टेपर करना शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है? दिस इज द वे। और कोई साइकियाट्रिस्ट भी है ग्रुप में, है ना? इसमें डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट करके नाम है, डॉक्टर चरणप्रीत सिंह, आप थोड़ा बात कर सकते हैं या आप क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पे? Nothing, sir. I just want to convey that the newly joined these members have not been informed on this group. जो newly formed group है, उसमें have not been added all the members. So one of my medical officer phoned me that I have not received the link. Even I have not received the link for today's meeting. That's why I have messaged that you please include all in this group so that we can join timely. वेरी थैंक यू डॉक्टर चरणप्रीत सिंह जी। इसको किसको बोलना है ये बताइए हमको। That I don't know, sir. You don't know. अच्छा ठीक है, we will talk, we will manage somehow. Thank you. Okay. Thank you. Our next question is that it is very common to prevent somatization disorder with genital complaints
and role of dermatologist in that by Dr. Rakesh Tilak Raj. Prevent somatization disorder with genital complaints. Now, preventing somatization disorder with genital complaint and role of the dermatologist. ये चीज क्वेश्चन प्रिवेंट ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात नहीं किया है. हम लोग ये बोला कि ये सिम्टम आएगा तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट देना है. प्रिवेंशन के बारे में बहुत बड़ा चीज हो जाएगा. दिस इज बियॉन्ड आवर परव्यू ऑफ द टुडेस टॉपिक. दूसरा चीज है रोल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट इन जेनिटल कंप्लेंट. अच्छा देखिए, यहाँ पे जो डिपेंड अपॉन प्रेजेंटिंग सिम्टम पेशेंट विल चूज द स्पेशलिस्ट कहाँ जाना है. तो वहां पे जाता रहता है, ट्रीटमेंट लेता है, इंप्रूवमेंट नहीं होता है, फिर आता है. तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जब जाता है तो आप लोग भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहते हो, है ना, स्टीरॉइड दे देते हो, जो भी एंटीफंगल है देते रहते हो. लेकिन कभी भी ये सोचते हैं इतना दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा अमिट्रिप्लिन डाल के देखते हैं. ठीक है, सो दैट हाउ यू नीड टू थिंक. ठीक है, यहाँ पे रोल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, रोल ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड इफ यहाँ पे बाय डॉक्टर राकेश तिलक राज करके लिखा है, क्या है डॉक्टर आदित्य जी थोड़ा बता देंगे क्या है क्वेश्चन? अच्छा, मे बी इज बिकॉज मैसेज सेंट बाय आदित्य, डॉक्टर आदित्य किशोर, but he has written Dr. Rakesh Tilak Raj. I am not able to understand it. Maybe we'll take it up later. Sir, if patient gets any side effect, we should taper down the dose or give some alternative medication. Dr. Rahul, would you like to answer? हाँ सर, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है साइड इफेक्ट से, तो एक बात आपको पूछना है कि ये साइड इफेक्ट कब से हुआ है. अगर हमारे मेडिसिन से हुआ है, ओके, एंड यू शुड सी व्हाट इज साइड इफेक्ट. इफ इट इज अ नोन साइड इफेक्ट, जैसे हमको मालूम है कि ये दवाई से ऐसे साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपने अमिट्रिप्लिन दिया है तो उससे कुछ लोगों को हाइपोटेंशन हो सकता है. तो अगर कोई ऐसे स्पेल आया है कि वो लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसे उठे हैं और चक्कर आ गया है, तो दैट इज अ नॉन साइड इफेक्ट, सो व्हिच वी आर एंटिसिपेटिंग. तो हम उनको बोल सकते हैं कि जब ये इस तरह के थोड़ा नॉन साइड इफेक्ट हो सकता है, तो the body will develop tolerance for it, and maybe we can try to cut down the dose like you said. Agar if there is a severe side effect, ठीक है, तो it is better that you stop the medication and then we can give alternate medication. नहीं तो if you think कि नहीं हमारे पास कोई medicine नहीं है, it is always better to refer to a psychiatrist. Anshul ji, I would Rahul, I will just add few points. Yes sir. जब भी साइड इफेक्ट करके जब वर्ड आता है, जब हम लोग कान पे सुनते हैं, सबसे ज्यादा ये इंप्रेशन आता है कि मर जाएगा पेशेंट, सीरियस साइड इफेक्ट हो जाएगा. एंड एज ए एलोपैथिक डॉक्टर वी नो दैट नो साइड इफेक्ट नो इफेक्ट, ऑलमोस्ट लाइक समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये चीज मैं हमेशा पेशेंट को पूछता हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब. मैं ये पहला क्वेश्चन हमेशा पेशेंट को ये पूछता हूँ कि आप क्या साइड इफेक्ट नहीं चाहते आप. तो वी हैव टू क्लैरिफाई दिस फ्रॉम पेशेंट पर्सपेक्टिव बेटर फर्स्ट. आपको कौन सा साइड इफेक्ट नहीं चाहते हैं? तो ऑफन आई गेट अ रेस्पॉन्स, सर किडनी पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एडिक्शन नहीं हो जाऊंगा ना सर. सो दीज आर द वे पेशेंट एक्सप्रेस द साइड इफेक्ट, एंड वी नो दैट दोस आर द नॉट द थिंग्स व्हिच वी आर प्रीऑक्युपाइड. वी आर प्रीऑक्युपाइड विद वेरी कॉमन टॉलरेबल साइड इफेक्ट. अभी मान के चलिए मैंने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है, मंडे लिया था, 2-3 दिन मेरा तो पेन था. ठीक है, और इसको नहीं साइड इफेक्ट है साइड इफेक्ट करके बोलते जाएंगे तो लोग बहुत वर्स्ट ऑफ द साइड इफेक्ट सोचेंगे. तो आप बोलना है कि टॉलरेबल साइड इफेक्ट एंड इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट एंड सीरियस साइड इफेक्ट लाइक लाइफ थ्रेटनिंग. तो इसके हिसाब से आप पेशेंट को समझाना पड़ेगा. अब मान के चलिए टॉलरेबल साइड इफेक्ट है, डोज क्यों टेपर करेंगे, आप उनको थोड़ा समझा दीजिए, रीएश्योर कीजिए, 2-4 दिन में कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ओलांजापिन देते हैं, पहला 2-3 दिन थोड़ा ज्यादा नींद आता है, और उनको बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, सिर्फ नींद आ रहा है, तो उनको बोला कि जिसको कंटिन्यू कीजिए वो अपना बॉडी में एडजस्ट हो जाएगी. सो कोई डोज कम करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और पेशेंट बोला बहुत ज्यादा नींद हो गई है सर, तो यू कैन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द डोसेज. ठीक है, और इतना डोज रिड्यूस कर देंगे कि 2.5 mg ओलांजापिन दे दिया, उसके बाद भी पेशेंट सर बहुत ज्यादा नींद है,
ऐसा इम्पॉसिबल है, अभी तक नहीं सुना है मैंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट 2.5 जब ओlanzapine पे बहुत ज्यादा नींद आ गया, कम करने के बाद भी कम हो रहा है, then we'll think of some other alternatives. So depend upon patient's perception, depend upon your experience. तो आप इसका बारे में सोचना है. तो साइड इफेक्ट इज ऑलवेज बी विद वन और अदर साइड इफेक्ट विद आवर एलोपैथिक मेडिकेशन. हम लोग तो झाड़ फूक तो नहीं देते ना, हम तो कुछ तो साइड इफेक्ट तो होता ही है. ठीक है, थैंक यू सर. Yes, sir. हेलो हाँ सर, can we use etioxalam instead of diazepam if diazepam is not available? राहुल, could you hear him? नहीं सर, instead of diazepam they were saying some सर एक बार फिर से आप diazepam के जगह पे. सर क्या हम etioxalam यूज कर सकते हैं अगर diazepam not available? Etioxalam. Diazepam is not available. Yes, etioxalam. हाँ, नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में इटिजोलम नहीं मिल सकता है. आपको मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन यूज इट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यस सर, थैंक यू. आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बोला है, थोड़े दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए यूज करके उसको बंद करना चाहिए. जो भी बेंजोडाइजिपिन दे रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए एक हफ्ते के बाद. यस, थैंक यू सर, थैंक यू. ओके, आई थिंक नाउ यू कैन गो अहेड. यस सर. So next in the CMD we have finished depression or somatization. Now we will go to anxiety disorder. तो पहले हम केस देखेंगे. A 22-year-old woman presented with complaints of 2 months history of dizziness, घबराहट, headache, बेचैनी. So now can you explain the above symptoms with known medical condition? जैसे हमने पहले बोला था, थायराइड है, कार्डियक है, कोई और pulmonary complaints है, नहीं तो anemia है. So some of the things can be explained, but you see whether in your examination, नहीं तो आपके हिस्ट्री में ये आ रहा है, नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? जनरल, जैसे आप जनरल इंक्वायरी कर सकते हैं नींद के बारे में, एपेटाइट के बारे में, फिर काम के बारे में. फिर देन गो टू स्क्रीनिंग, स्पेसिफिक स्क्रीनर, क्या क्वेश्चंस पूछना है उनको. सो आप देख सकते हैं 8 to 11 in the past few weeks did you get sudden attack of fear or anxiety. ये तो हम बहुत सारे लोग सुने ही होंगे कि सडनली ऐसे ही सडनली बेचैनी आ जाता है, सडनली घबराहट आ जाता है, तो बेवजह ऐसे हो सकता है कभी कभार. सो इन द पास्ट फ्यू वीक्स, कई हफ्तों में ऐसा हुआ है कि सडनली बेचैनी, नहीं तो जरा घबराहट हो गया है. सो विदाउट एनी रीजन, बेवजह ऐसे कुछ हुआ है, तो यू कैन सी कि अगर हुआ है तो यू कैन चेक फॉर पैनिक डिसऑर्डर. अगर पिछले कुछ महीनों में बहुत टेंशन हो रहा है, गेटिंग टेंस्ड अप, स्ट्रेस्ड अप विद नो रीजन और फॉर स्मॉल ट्रिवियल रीजन, जैसे कि लोग बोलते हैं, जैसे सर बोलते हैं टेंशन पार्टी, तो बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत टेंशन लेते हैं. जैसे कि कुछ बस छूट हो, कहीं बाहर जाना है तो बस छूट गया है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले जाना, नहीं तो हर दिन के जो भी कामकाज है, डेली एक्टिविटीज, उसके लिए भी बहुत टेंशन ले जाना. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ऐसे कुछ होता है क्या? इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आर यू अनेबल टू कंट्रोल और स्टॉप दिस टेंशन? ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ सकते हैं कि टेंशन को रोकना हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन है क्या और मुझसे सह नहीं पा रहा है, मुझे रोका नहीं हो रहा है इससे. तो इफ देयर आर थिंग्स देन यू कैन चेक फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ये दोनों एंजाइटी डिसऑर्डर के है. तो अगर आपको मिला है वरीइंग अबाउट ट्रिवियल रीजंस एंड अनेबल टू कंट्रोल, जैसे घबराहट हो रहा है और बेचैनी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो आप डायग्नोस चेक कर सकते हैं कि डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस में कि जनरल एंजाइटी है, नहीं है. तो क्या है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर? An experience of excessive and uncontrollable anxiety or tension, worries or nervousness with no obvious or some trivial reasons which is there for about more than 6 months. तो बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर एंजाइटी है, वरी है, नर्वसनेस है, टेंशन है, बेवजह नहीं तो बहुत छोटे छोटे वजह से, और 6 महीने से लगातार ऐसा ही, 6 महीने एटलीस्ट 6 महीने तक रहना चाहिए. टेंशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, क्या कैसा टेंशन है ये? जनरलाइज्ड इन नेचर, बहुत जनरलाइज्ड इन नेचर, इन्वॉल्विंग सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फैमिली, हेल्थ, फाइनेंसेस, वर्क हो, नहीं तो फैमिली ट्रेजेडी हो, कोई बीमारी हो, इल हेल्थ, जॉब लॉस हो, एक्सीडेंट हो,
इवन व्हेन देयर आर नो ऑब्वियस साइंस ऑफ ट्रबल। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये होता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पैसों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम और वरी का इधर उधर है, प्रॉब्लम इतना छोटा है, वरी इतना बड़ा है, देन वी आर थिंकिंग कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि घर वाले को प्रॉब्लम इतना नहीं लग रहा है, लोगों किसी और को प्रॉब्लम नहीं लग रहा, लेकिन आपको ऐसा लग, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, पैसों को प्रॉब्लम है, मतलब नो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये जनरलाइज्ड इन नेचर और ट्रिवियल, बहुत ही उसके अभी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन पेशेंट के मन में जो टेंशन है, वो बहुत ही ज़्यादा है उससे कंपेयर करते हुए। पर्सिस्टेंट, दैट इज़ लगातार थ्रू आउट द डे इट इज़ प्रेज़ेंट। तो जो जहाँ पे भी जो भी काम कर रहा है, दिमाग के अंदर यही टेंशन घूम रहा है। फ्री फ्लोटिंग एंग्ज़ायटी, मतलब एंग्ज़ायटी डज़ नॉट हैव ए ऑब्वियस कॉज़ विदाउट पिन पॉइंटिंग एनी सोर्स ऑफ आइडिया। ऐसे ही दिमाग में टेंशन है, क्या है? ठीक से बोल नहीं सकता हूँ कि इसी वजह से है, लेकिन कुछ ना कुछ टेंशन तो है दिमाग में और वो जा ही नहीं रहा है। टेंशन और बेचैनी, ऐसे घबराहट होता रहता है दिन भर। क्या वजह है? कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कभी ऐसे रेस्ट नहीं कर पा रहे हो दिमाग में, ऐसा लग रहा है कि टेंशन ही टेंशन है। तो इस तरह का टेंशन है, व्हिच इज़ जनरलाइज्ड इन नेचर, व्हिच इज़ पर्सिस्टेंट, दैट इज़ थ्रू आउट एंड व्हिच इज़ फ्री फ्लोटिंग, दैट इज़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक पिन पॉइंट वास टू इट। इसके साथ-साथ और क्या? इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें भी हो सकते हैं। तो ये टेंशन का कैरेक्टरिस्टिक है। टेंशन के साथ-साथ क्या हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि मेंटल टेंशन, मतलब क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड वरीज़ अबाउट फ्यूचर मिसफॉर्च्यून, कि कुछ हो जाएगा फ्यूचर में, कि बर्बाद हो जाएँगे, पैसे ऐसे हो जाए। तो ऐसे एवरीडे डे टू डे एक्टिविटीज़ की, स्कूल जा रहे हो तो बस का कुछ हो जाएगा, नहीं तो ऑफ़िस को जा रहे हो तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे ही कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन रहता है और लगता है कि फीलिंग ऑन एज, कि कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा फीलिंग ऑन एज, डिफिकल्ट इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कोई काम-काज में दिमाग नहीं काम करता है क्योंकि टेंशन ही टेंशन है दिमाग के अंदर। नेक्स्ट ये है मेंटल टेंशन, उसके साथ-साथ मोटर टेंशन, जैसे कि रेस्टलेस है, बैठते हैं और हाथ-पैर हिलाते रहते हैं, ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, तो टेंशन, उनको सर दर्द होता है, टेंशन, हेडेक और हाथ-पैर काँपना शुरू हो जाता है, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो रिलैक्स करना बहुत मुश्किल होता है और नींद में दिक्कत होता है, नींद नहीं आता है, बेड पे लेटते हैं, लेकिन इधर-इधर, इधर घूमते रहते हैं क्योंकि सर में टेंशन, टेंशन ही टेंशन है, तो नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये है मोटर टेंशन। तो उसके साथ-साथ ऑटोनॉमिक अराउजल, ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी होता है, जो सब लोग बोलते हैं जब टेंशन आते हैं, तो लाइट हेडेडनेस, तो चक्कर आना जैसा, पसीना छूटना और टैकीकार्डिया, धड़कन तेज हो जाना, टैकिप्निया, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, लोग बोलते हैं कि पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, गला सूख जाना, तो ऐसे सिम्पटम्स बहुत सारे लोग बोलते हैं जब टेंशन होता है। बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है थोड़ा-थोड़ा, जब कोई अ डेडलाइन आया हो, कोई एग्ज़ाम हो किसी को, तो टेंशन आता है और हाथ-पैर, एग्ज़ामिनर के सामने बैठते हैं तो हाथ-पैर काँपता है, पसीना छूट जाता है और धड़कन तेज़ होता है। लेकिन वो ब्रीफ टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, वो हो गया तो हो गया, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी में बेवजह से ऐसे दिन भर होता रहता है और कंट्रोल करना, काबू में नहीं रहता है, कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। तो जब आपको इस तरह के सिम्पटम मिलते हैं, तो फिर आप जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट जाएँगे पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है? पैनिक डिसऑर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? पैनिक मतलब, पैनिक जनरली पैनिक अटैक होता है रिपिटेटिव, मतलब एक से ज़्यादा बार आना, मोर देन वन अटैक, स्पॉन्टेनियस, सडन ऑनसेट विथआउट एनी रीज़न, बेवजह है, अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कहाँ आ रहा है, घर में आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाज़ार में आ रहा है, नहीं तो काम में आ रहा है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कब आता है, सडनली आ जाता है, बेवजह आ जाता है और एक से ज़्यादा बार ऐसे आते रहता है। तो क्या होता है उस टाइम में जब ये ऐसा अटैक आता है? सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन, जैसे धड़कन तेज होना, चेस्ट पेन, छाती भारी हो जाना, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, चोकिंग सेंसेशन, गला जैसे होता है कि सांस लेने में दिक्कत होना, कोई गला दबा रहा है, ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाता है, गला सूख जाता है और लगता है कि कुछ होने वाला है। तो सेकेंडरी फियर ऑफ डाइंग, लूजिंग कंट्रोल और गोइंग मैड, लोग बोलते हैं कि मैं मैं मर जाऊँगा। तो इतना टेंशन हो रहा है कि सडनली ऐसे आ गया है कि साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक जैसा हो रहा है, कोई धड़कन तेज़ हो रहा है, मैं मर जाऊँगा अभी, इससे बच नहीं पाऊँगा, ऐसे टेंशन हो रहा है। तो ये होता है फियर ऑफ डाइंग, लूजिंग कंट्रोल, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, इससे कोई बचाव ही नहीं है मेरा।
नेक्स्ट इससे साथ साथ क्या हो सकता है, फियर ऑफ एंटिसिपेटरी अटैक, कि इस एक बार ऐसा आता है तो लोगों को डर लगता है कि फिर से ऐसा आएगा मुझे, तो फियर ऑफ एंटिसिपेटरी अटैक कि और एक बार ऐसा होगा, ये फियर रहेगा कि मुझे फिर से ये आएगा, और दे स्टार्ट अवॉइडिंग सर्टेन सिचुएशंस। जैसे कि अगर होता है कि बाजार में ऐसा कुछ अटैक आ गया है, तो उनको फिर से ये दिमाग में आएगा कि फिर से मुझे ऐसा हो जाए तो बाजार जाना ही बंद करेंगे। सो दे विल अवॉइड सिचुएशंस वेयर दे हैव प्रीवियस अटैक्स। ओके, और अटैक कैसे होता है, सडनली स्टार्ट होता है, इट पीक्स इन फ्यू मिनट्स, तो 2-4 मिनट में बहुत इतना तेज होता है कि लगेगा कि मर जाएंगे लोग, तो इतना तेज होता है, फिर अपने आप से कम हो जाता है, 10-20 मिनट के बाद अपने आप से कम हो जाता है। ठीक है, तो पैनिक अटैक होता है, सडनली आता है, और इस तरह के ऑटोनोमिक सिम्टम्स आते हैं, लोगों को लगता है कि मर जाएंगे यहाँ से, इसे कोई छूट नहीं है, ये तो होगा, मेरा काम खत्म हो गया है, ऐसा टेंशन आ जाता है। फिर उस टाइम में उनको थोड़ा देर तक रहता है, 5-10 मिनट के बाद, उसके बाद अपने आप कम हो जाता है, लेकिन उनको डर लगता है कि फिर से ऐसा होगा, और ये लोग अवॉइड करेंगे इस तरह के सिचुएशन को। तो ये पैनिक अटैक कभी-कभार देख सकते हैं कि जैसे हमने बोला है, पैनिक अटैक शुड बी स्पॉन्टेनियस। अगर पैनिक अटैक नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप सोच रहे हैं, तो आपको मालूम है कि होने वाला है, तो दिस पैनिक अटैक कैन बी अ पार्ट ऑफ, जैसे हमने बोला है, डिप्रेशन, नहीं तो एंग्जायटी के साथ साथ पैनिक अटैक भी हो सकता है, एंड इट इज नॉट पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में सेपरेट जो होता है, इट शुड बी अनप्रिडिक्टेबल एंड स्पॉन्टेनियस। जो पैनिक अटैक है, जो प्रेडिक्टेबल है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी का क्या होगा, टेंशन है, पैसों का टेंशन है, तब अटैक आता है, मुझे मालूम है कि अब होने वाला है और हो रहा है, तो विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस इज प्रेडिक्टेबल, इट इज अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी, नहीं तो डिप्रेशन। ऐसे स्पॉन्टेनियसली अनप्रेडिक्टेबल आने वाला अटैक ही पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर विच आर पार्ट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो अगर इस तरह के सिम्टम हमें मिलते हैं, तो हमारा डायग्नोसिस में आएगा, देख सकते हैं आप कि प्रिडोमिनेंटली एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, नहीं तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सिम्टम मिलने पर हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आया है, सिम्टम्स है, तो आपने जनरल इंक्वायरी किया है, फिर स्क्रीनिंग में आपको एक सिम्टम मिला है, फिर डायग्नोस्टिक गाइडलाइन आ गया है, डायग्नोस्टिक गाइडलाइन में देखा है कि ये जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया है, फिर आप टेम्पलेट पे जाइए, ट्रीटमेंट टेम्पलेट पे, और देखिए कि जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं फिर से कि प्रिडोमिनेंटली एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो उसका इलाज होगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एसएसआरआई, फिर बेंजोडाइजेपिन, फिर काउंसलिंग उसके साथ, और बेंजोडाइजेपिन पहले 2 से 4 हफ्ते तक ही देना है। ठीक है, सो फर्स्ट 2 to 4 वीक्स ओनली वी आर गोइंग टू गिव बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि इतना ऑटोनोमिक सिम्पटम है, बेचैनी है, एंग्जायटी है, तो जब तक हमारा मेडिसिन एसएसआरआई काम नहीं, पूरा असर नहीं होता है, तब तक पेशेंट को राहत मिलने के लिए बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं, तो उसको हम 2 से 4 हफ्ते तक लगाएंगे, उसके बाद बंद कर देना चाहिए बेंजोडाइजेपिन को एंग्जायटी डिसऑर्डर में। ठीक है, तो आप टेम्पलेट में देख सकते हैं, एंग्जायटी और डिप्रेशन का एक ही, जैसे हमने पहले बोला था, व्हाई दिस इज कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, बिकॉज सिम्टम के जो भी साइंस एंड सिम्टम्स है, बहुत कोमॉर्बिड है, एक तरह के सिम्टम्स और साइंस है, दूसरा ट्रीटमेंट भी एक तरह का सिम्टम ट्रीटमेंट है उन सब का, तो इसीलिए हमने पूरा मिला के कॉमन मेंटल इलनेस का रूब्रिक में उसको देखा गया है। और जैसे आप देख सकते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट यही है, फ्लोक्सटिन दे सकते हैं आप, उसके साथ साथ क्लोनाजिपाम, नहीं तो डायजिपाम दे सकते हैं। जैसे सर पूछ रहे थे, कोई भी बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बेंजोडाइजेपिन थोड़े दिन के बाद, थोड़े हफ्ते के बाद बंद कर देना चाहिए, और अपना एसएसआरआई को ही चालू रखना चाहिए। अगर वो नहीं, फ्लोक्सटिन नहीं है, तो एस्टेलाप्राम दे सकते हैं, वो नहीं तो अमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं। फिर से वही कॉमन चीज है, जैसे काउंसलिंग, उसके साथ साथ कि ये एंग्जायटी डिसऑर्डर है, उनको बता सकते हैं कि ऐसे घबराहट है, बेचैनी का बीमारी है, और इसका इलाज है, बहुत सारे लोगों का ऐसे हो सकता है, तो 2-4 पहले हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये मेडिकेशन काम करने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, उसके लिए ही हम बेंजोडाइजेपिन ऐड कर रहे हैं, ताकि जब भी ऐसा पैनिक अटैक, नहीं तो एंग्जायटी अटैक होता है, तो अटैक कम हो जाता है, ये बेंजोडाइजेपिन, और नींद भी ठीक हो जाता है। तो अगर कोई फिर फॉलोअप को बुला सकते हैं और इफेक्ट देख सकते हैं, और इफेक्ट और साइड इफेक्ट के हिसाब से आप
उनको मेडिकेशन को डोज बढ़ा सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट 50% से कम है, 50% से ज्यादा है तो डोज कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है तो फिर रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहले उनको बताना चाहिए कि कैसे ले रहे हैं वो देखना है, और ठीक ठाक जैसे हमने प्रिस्क्राइब किया है वैसे ले रहे हैं तो फिर उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। तो जैसे आप प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे तो लोग बोलेंगे आके कि इससे एंग्जाइटी एक चीज है, घबराहट ऐसे एक चीज है कि अगर उसका इफेक्ट आता है तो पेशेंट खुद आके बोलता है हमें कि बहुत राहत मिला है सर, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जितना मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना राहत मिलेगा ये टेंशन से, कि ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद मेरा टेंशन फ्री हो गया है। तो ऐसे अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो पेशेंट अपने आप से बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, पैनिक और जनरलाइज एंग्जाइटी, पूरे एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट टेम्पलेट तो यही है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आता है तो फिर यही फ्लो है हमारा कि स्क्रीनर अप्लाई करिए, फिर डायग्नोसिस, स्क्रीनर में कोई पिकअप करता है सिम्टम तो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस देखिए, फिर डायग्नोस करिए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट टेम्पलेट देके ट्रीटमेंट देना है, फिर उसके बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा चार्ट जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स का पूरा है जो हम बात कर रहे थे कि कितना डोज देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जरूरी चीज आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे पिछले सेशन में सर बता रहे थे कि मैक्सिमम डोज हम इसमें सर ने खुद बनाया जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात किया है और जितना कंफर्टेबल है लोग दे सकते हैं अपने प्रैक्टिस में जनरल पीएचसी लेवल में, तो उसके लिए सेपरेट दिया है आपको। हालांकि आप देख सकते हैं मैक्सिमम डोज जो साइकियाट्रिस्ट देते हैं आप देख सकते हैं वो दुगना है, कि जैसे आप फ्लॉक्सिन दे सकते हैं तो स्टार्टिंग डोज 20 है, लेकिन मैक्सिमम डोज हमने रखा है जीपी के लिए 40, हालांकि हम देते हैं 80 तक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है कुछ दवाइयों से, कि कुछ लोग इंसोम्निया मतलब नींद का कोई प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अगर रात में नींद का प्रॉब्लम होता है तो प्रिफरेबली हम बोल रहे थे फ्लॉक्सिटिन सुबह दे सकते हैं, तो रिमार्क्स में देखिए प्रिफरेबली इन मॉर्निंग। तो इसके क्योंकि कुछ लोगों को तो एक्टिवेशन जो बोलते हैं कि तो नींद का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस दवाई से, क्योंकि हम दे रहे हैं डिप्रेशन लोगों को जिनको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे खाली बैठे हुए कोई काम करने, तो अगर ये देंगे तो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, काम करना शुरू हो जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये इससे ये है, इसीलिए हम इसको सुबह में दे सकते हैं। एस्टेलोप्राम आप देख सकते हैं इनिशियल डोज 10 mg है, मैक्सिमम डोज जीपी को दिया है 20 mg, हालांकि मैक्सिमम डोज जो हम देते हैं वो 30 तक दे सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप 60 से ऊपर लोगों को दे रहे हैं, ओल्ड एज लोगों को दे रहे हैं, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, तो आप जब फॉलोअप के लिए बुलाएंगे तो एक आप उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं हो रहा है कोई। ठीक है, जो आप कोई साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये आपको मालूम है कि हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है कुछ लोगों को, तो आप फॉलोअप के लिए बुलाएंगे तो एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा के देख सकते हैं, वो भी ओल्ड एज 60 के ऊपर लोगों के लिए ही है। ठीक है, और आप अमिट्रिप्लिन देख सकते हैं नीचे ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन में, उसका इनिशियल डोज 10 है, मैक्सिमम डोज दिया है 50-50 आप जीपीस के लिए, लेकिन आप देखिए मैक्सिमम डोज साइकियाट्रिस्ट हम देते हैं 300 तक, तो इसका सेफ्टी मार्जिन आप देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम डोज आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो डोज देने वाले हैं साइकियाट्रिस्ट का डोसेज वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, और प्राइमरी लेवल में जो भी आपके पास जो आते हैं, इससे उनको राहत मिल जाता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप कंसल्ट करके आप कभी भी आप साइकियाट्रिस्ट को कोई कॉल करके पूछ सकते हैं कि इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं, हमें भी पूछ सकते हैं, हम भी अवेलेबल है, तो आप पूछ सकते हैं कि हमने 50 तक दिया है, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्या? आप देख सकते हैं कि हम 300 तक दे रहे हैं, तो आप थोड़ा पूछ के फिर आप भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट जो है आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको भी मालूम हो कि क्या साइड इफेक्ट्स कॉमनली देख सकते हैं, और अगर आपके पेशेंट जो पूछता है कि सर साइड इफेक्ट्स क्या है, ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम होना है कि ये हमारे दवाई से हो रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है कि पेशेंट कोई और भी दवाई ले रहा है कोई और वजह से, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि पेशेंट उस दवाई का साइड इफेक्ट हमारा दवाई के ऊपर बोल रहा है और बोल रहा है कि मैं दवाई नहीं लूंगा। जैसे कोई मैडम पूछ रहे थे कि पेशेंट नॉर्मली हमारे साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते हैं, तो उनको ऑलरेडी पहले है,
तो कोई और साइड इफेक्ट को इस हमारे मेडिसिन से लिंक करके वो लोग सोचेंगे तो दवाई नहीं लेंगे। तो हमें भी मालूम होना है कि कौन से कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ताकि अगर पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि सर मुझे ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि या मालूम है कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, 2-4 दिन में बॉडी एडजस्ट हो जाएगा और ये साइड इफेक्ट चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ये टेबल दिया गया है ताकि आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्या साइड इफेक्ट्स है और क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई आपके साथ आता है, ठीक है? तो अभी मैं लास्ट में एक चीज मैं करना चाहता हूँ। एक केस विग्नेट में आपके लिए नहीं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स और हमारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का सिमिलरिटी हो सकता है, ठीक है? तो ये देखिए, आप ये देखिए, इट्स अ 60-year-old obese female presenting to you with onset of shortness of breath, जैसे सांस लेने में दिक्कत होता है, mild fatigue, okay, chest discomfort or dizziness, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड टोबैको यूज इज प्रेजेंट। तो ये सिम्टम्स आए हैं। तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, आपने अपने जो पेशेंट को करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको मालूम हुआ है कि बायलेटरल पीडल एडिमा है, पावरफुल है, और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन आपने किया है तो वीजिंग है, और आपके कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में मरमर आ रहा है। तो फिर आपका डिफरेंशियल होगा कोई मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे कि सीओपीडी एक्सरसाइजेशन हो, हार्ट फेलियर हो। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको दिख रहा है कि पीडल एडिमा है, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में वीजिंग है, मरमर है। तो these are all pointed towards medical illness। जैसे हमने पहले बोला था, medical illness takes priority, और how medical illness has to be given priority, और कैसे उसको जांच करना है, ठीक है? तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एबीजी करेंगे, फिर उसके रिपोर्ट के हिसाब से आप मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा ही आप अगर नेक्स्ट देखिए, 20-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, बोलती है इट इज सडन इन ऑनसेट एंड लास्ट फॉर 10 मिनट्स एंड फील्स लाइक जान चली जाएगी। इट हैपेंस एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड अभी उसको लग रहा है कि नाउ शी इज स्केयर्ड दैट शी विल हैव अ हार्ट अटैक, हार्ट एलिमेंट, एंड ऐसे अगले मुझे एपिसोड आएंगे दैट शी विल हैव फर्दर सच एपिसोड्स। उसने मल्टीपल ईसीजी करवाया है और नॉर्मल है। आप देख सकते हैं उसमें और इसमें कितना फर्क है। लेकिन जब पेशेंट आता है तो बोला है कि मुझे धड़कन ऐसे हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे पसीना छूट रहा है, धड़कन तेज हो रहा है, मेरी जान चली जाएगी, ईसीजी करवाओ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस आल्सो इज टू रूल आउट मेडिकल कॉजेस, कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करिए, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ रहा है, ईसीजी ठीक ठाक है, तो नाउ यू नो द डायग्नोसिस। ये तो पैनिक डिसऑर्डर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सडन ऑनसेट है, 10 मिनट के लिए चले गए हैं, ईसीजी बिल्कुल ठीक ठाक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आया है, और आप देख सकते हैं कि 20 ईयर्स है, नॉर्मल एज नहीं है हार्ट अटैक के लिए भी। तो ये सब पॉइंटर्स है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं कैसे सारे बेंजोडाइजिपिन फिर हो गया है। तो ये है कि आप देख सकते हैं कि कैसे मेडिकल इलनेस और साइकाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज जो है साथ में एक तरह के लग सकते हैं, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन और आपका हिस्ट्री जो मेडिकल इलनेस के लिए आप पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू रूल आउट मेडिकल इलनेस देन यू कैन कमेंट। इसीलिए आपको जो प्रोफार्मा जो स्क्रीनर दिया है उसमें पहला है कैन यू एक्सप्लेन द सिम्टम्स बेस्ड ऑन मेडिकल इलनेस। जैसे पहले आप देख रहे थे मेडिकल इलनेस, यस मरमर है, वीजिंग है, एडिमा है, पीडल एडिमा है, यू कैन एक्सप्लेन बेस्ड ऑन सम मेडिकल कंडीशन। So you have ruled out, you have ruled in medical conditions, and that is why you have given done other tests and given treatment accordingly, right? तो ये है, I just wanted to give some scenario so that you will understand कि कैसे हो सकता है, ठीक है? Now I want to focus on two important things, जैसे कि हमने कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन में क्या करना है। जैसे आपके क्लिनिक में आते हैं लोग, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ साथ भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम आप ढूंढ सकते हैं, नहीं तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है उनके पास। तो क्या करना चाहिए जब कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेस है? तो देख सकते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैन बी प्रेजेंट इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर। तो डायबिटीज में कैसे होता है? अगर सोचे कि उन्होंने अपना डायबिटिक मेडिसिन ज्यादा लिया है, ओके, तो क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? पसीना छूट जाता है, टेंशन हो जाता है, ओके, हाथ पैर कांपने लग जाता है, ओके। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये पैनिक जैसा ही है। तो अगर नॉन केस ऑफ डायबिटीज है तो पहले आपको पूछना है कि मेडिकल क्या है, जीआरबीएस चेक करिए, है ठीक है। अगर
ये सब ठीक है, फिर भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि टेंशन हो रहा है, पसीना छूट रहा है, धड़कन तेज हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ इंडिपेंडेंट। अगर इसी के दौरान आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू हैव टू ट्रीट डायबिटीज, राइट? तो ऐसे ही टेंशन, हाइपरटेंशन में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, नहीं तो ज्यादा लिया हो। सो वी शुड बी केयरफुल। इस तरह के जो मेडिकल इलनेस है उसके साथ साथ कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी शुड रूल आउट मेडिकल इलनेस और सी फॉर मेडिकल इलनेस फर्स्ट। अवॉइड पॉलीफार्मेसी। आपने दो चार no, rather than giving 2-3 kinds of medication, try to give one medication which benefits most of the things. जैसे कि हम एक SSRI दे रहे हैं, खत्म, don't have to give more 2 or 3 medicines है। अगर आपको स्टार्ट करना है, लो डोज से स्टार्ट करना है, बिगिन लो गो स्लो। सो लो डोज, कम से कम डोज से स्टार्ट करिए, और जब भी आप डोज बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप 1 हफ्ते से डोज बढ़ाना चाहते हैं, अगर बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम है, तो 2 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते के बाद उसको डोज बढ़ा सकते हैं, देख के कि ये टॉलरेट कर पा रहे हैं जो डोज आपने दिया है, और वो डोज के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो थोड़ा धीरे ही आप डोज एस्केलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो बिगिन लो, गो स्लो। ओके, अगर कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो ऑलवेज रेफर टू ए साइकियाट्रिस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम है और साइकियाट्री का भी मालूम नहीं हो रहा है और इंटरेक्शन मालूम नहीं हो रहा है दवाइयों का, तो ऑलवेज रेफर टू ए साइकियाट्रिस्ट और कॉल अ साइकियाट्रिस्ट। आस्क, सर मुझे ऐसा लग रहा है ये है, तो ऑलवेज रेफर और कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट बिफोर डूइंग दैट। ठीक है। there is one other special condition which again PHC में होता है कि कि people who are pregnant will also come to you, right? तो प्रेगनेंसी में क्या करना है, जनरल रूल जो भी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दवाई अवॉइड करना चाहिए। ओके, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही कॉशन से देना चाहिए, बट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अगर आपके क्लिनिक में, आपके PHC में कोई आते हैं प्रेगनेंसी लोग, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रेफर टू ए साइकियाट्रिस्ट इफ अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आपको ये जनरल रूल याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई दवाई नहीं देना है, अवॉइड करना है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉशन के साथ धीरे धीरे तो देना, दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिफरेबली साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं अगर कोई प्रेगनेंसी ही नहीं तो लैक्टेशन में है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन जनरल थिंग्स व्हिच वी शुड कीप इन माइंड, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट हेट्रोजेनस पॉपुलेशन जो आता है तो PHC में, सो बहुत बुजुर्ग लोग आते हैं, एल्डरली लोग आते हैं, प्रेग्नेंट लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, तो यू शुड नो कि नहीं इनके लिए दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं तो कौन दे सकता है, अगर आप दे सकते हैं, नहीं तो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट लोग हैं उनमें भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप डायग्नोज किया है, आपके पास आए हैं, उन्होंने डायग्नोज किया है डिप्रेशन, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो आप क्या करना है, इट्स बेटर टू रेफर टू सम अ साइकियाट्रिस्ट सो दैट दे विल डिसाइड। ठीक है, सो आई थिंक this concludes this brings the presentation from my side to an end. ठीक है, तो now I think we can open for discussion। अगर कुछ आपके डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, नहीं तो कुछ कमेंट्स है, so I would like all of you to to say something so that कि हमें भी समझ में आया कि इसके बाद के सेशंस को अगर आप चाहते हैं तो इसमें समझ में आया है, नहीं तो इसे कुछ और अलग तरीके से बताना है, so we are always welcome to, so we would like you to give us feedback so that we can improve on the sessions also, and also हमें भी मालूम होगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। Thank you very much, Rahul. Hello. I think you have presented really fantastically well. Probably after clinical schedule of primary care psychiatrist prepared by us, I could see that somebody else has presented very well our work. Okay. Anyway, you are part of our team and you are a young generation person, and the information which we wanted to convey, at least you have conveyed in the much better way. Thank you very much. And now it is open for discussions, clarification, comments, and constructive criticism. Please don't go for destructive criticism, go for constructive criticism so that we will learn, you learn, and we will work it out for improvement of the system. Okay, and there are 2 comments which is sent directly to me here. I will respond to it later. And yeah, now any question, comments, clarification? सर लैक्टेटिंग मदर में कौन सा सर SSRI सेफ है? लैक्टेटिंग मदर में डॉक्टर साहब थोड़ा सा SSRI कौन सा सेफ है? कौन सा सेफ है?
नहीं, अभी ये अच्छा, लैक्टेटिंग सारा। मदर में देना नहीं देना पहले डिसाइड कर लेना आप, ठीक है। अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। और जी सर। आपको शुरू में पेशेंट देख रहे हैं लैक्टेटिंग मदर को, हम चाहते हैं आप नहीं शुरू कीजिए, आप साइकियाट्रिस्ट को रेफर कीजिए, या आजकल तो आप टेली कंसल्ट कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट में, आप गवर्नमेंट सेटअप में कुछ कर लीजिए। ये आप कॉन्फिडेंट है देना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट सेट्रालिन एट ए लो डोसेज इज द बेस्ट चॉइस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, या और Thank you, sir. शुरू में 4-5 लैक्टेटिंग मदर को दे दिया ना एंटी डिप्रेसेंट, आपको ये थोड़ा फॉलो अप कर लिया 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, उसके बाद यू डिसाइड, यू आर ए किंग by that time, you have a lot of experience of 5 patient treatment is not a small, then you decide and you read it well and you titrate your own practice. Okay, yeah. Okay, Next, thank you. और कुछ? और I'll just try to summarize Hello. what Rahul has told. हाँ सर, Hello. हाँ, just बताइए। Hello. Good afternoon, sir. Dr. में आ Dillo from सकते हैं? Bhatinda. Hello. वीडियो में आ सकते हैं डॉक्टर साहब? आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो हमको ऑडिटर हेलुसिनेशन में सुनना पसंद नहीं लगता है साइकियाट्रिस्ट को, हम देखना भी चाहते हैं। Hello. Good afternoon, sir. I'm Dr. Dillo from Bhatinda. जी Hello. जी बताइए। Hello. हाँ Sir, डॉक्टर मैं साहब। पूछ रहा था कि why we have kept predominantly क्यों यूज किया हमने वर्ड predominantly rather than diagnosing it as a depressive disorder or a generalized anxiety disorder? Why we have kept the definition as predominantly? या वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब। आप साइकियाट्रिस्ट है ना? आप ऊपर कहीं नाम देखा था, आप साइकियाट्रिस्ट करके लिखे थे, है ना? नहीं सर, I am working as medical officer at OST Center Bathinda. अच्छा, ठीक है। डॉक्टर राहुल, वुड यू लाइक टू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? सर, जैसे हमने पहले ही बताया था कि many of the people who come, okay, so we'll have set of symptoms, okay, but जैसे हमने बोला कोमॉर्बिड, बहुत सारे ऐसे, अगर आप देखते हैं कि ना थोड़ा एंग्जाइटी के सिम्टम है, थोड़ा डिप्रेशन के सिम्टम है, थोड़ा सिम्टम के सिम्टम है, बट what is the predominant thing which is there for us to look and come to a diagnosis and to treat? तो इसीलिए for a for a जनरल साइकियाट्री प्रैक्टिस के लिए इसीलिए हमने लिखा है प्रीडोमिनेंटली व्हाट काइंड ऑफ इलनेस। अगर सब है तो वी आर नॉट एबल टू डायग्नोज एवरीथिंग इज एट द सेम लेवल, दैट्स व्हाई लास्ट में है कि इट इज नो मिक्स्ड जो लिखा है, प्रीडोमिनेंटली डिप्रेशन, प्रीडोमिनेंटली एंजाइटी, प्रीडोमिनेंटली सोमेटाइजेशन। अगर आपको लगता है कि सभी एक जैसा ही है, एवरीथिंग इज एट सेम लेवल, यू आर नॉट एबल टू से, देन देयर इज अ मिक्स्ड डिसऑर्डर फॉर यू। नहीं डॉक्टर जसप्रीत सर जी, मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी समझाने के लिए कोशिश करूंगा आपको। थैंक्स फॉर शोइंग योर स्मार्ट फेस, यू आर रियली स्मार्ट and your question is also very smart, and I would say that, see, why we have added that classification which we are given in clinical schedule for you is not is there in any standard psychiatric book. Please remember that. And we are dealing with primary care psychiatry, not the tertiary care or specialist psychiatry. Okay, and coming to primary care psychiatry, majority of the common mental disorder patients doesn't go with pure depression, pure GAD, pure somatization. More than 60 to 70% of patient goes with a mixed features. Okay, so this is the reality in the primary care, and which we have read in textbook, but we have seen when we were training in the primary care doctor in their general patients. Okay, so in that scenario, for person who is practicing psychiatry at general practice, he doesn't have to think pure depression नहीं है, क्या करना है। तो उनको काम आसान करने के लिए हम लोग बोला कि आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सोमेटाइजेशन हो, कोई इतना ज्यादा नहीं है, आप CMD करके लिख के एंटी डिप्रेशन दे दो। और कुछ डॉक्टर है आपकी जैसे डॉक्टर थोड़ा सा टीज करना चाहते हैं, या कुछ अलग तो होगा, तो देखते हैं क्या करें। तो आप प्योर डिप्रेशन करने के लिए थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा चाहिए, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स में। तो हम लोग बोले कि उतना ज्यादा समय नहीं है, तो एटलीस्ट प्रेडोमिनेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर करके बना दो, आपको भी खुश हो गए, आपको नेक्स्ट पेशेंट भी वेटिंग करना नहीं पड़े।
So this is the only practical reason which we have made. But when we come to page number 3 and 4, we have given diagnostic criteria of a pure illness. Please remember that way. Okay. I hope we have answered your question. सर मेरा एक और भी क्वेश्चन था, जी, जैसे आपने बताया कि फ्लुक्सिटीन जो है हमें प्रेफरेबली सुबह में देना चाहिए ड्यू टू इट्स इंसोम्निया कॉजिंग प्रॉपर्टी। सर वैसे एस्टेलोप्राम भी रात को दे सकते हैं कि वो भी इंसोम्निया कर सकता है कि नहीं? राहुल, Yes, sir. would you like to answer? सर एस्टेलोप्राम का कोई इतना एक्टिवेटिंग इफेक्ट नहीं है, इंसोम्निया नहीं है, तो एस्टेलोप्राम आप रात में दे सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, 2 एंटी डिप्रेसेंट है, उसको सुबह देने के लिए हम लोग बताते हैं हमेशा, एक फ्लुओक्सेटिन और दूसरा बुप्रोपियन। एंड बुप्रोपियन जनरली हम लोग टोबैको एडिक्शन में भी दे देते हैं, ठीक है। दूसरा सब एंटी डिप्रेसेंट नाइट में देना है। और कमिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ एसिटिलोप्राम, शायद आप कभी साइकियाट्रिक कोई किताब में पढ़ लिया होगा एसिटिलोप्राम, शायद इसलिए थोड़ा डाउट आ गया आपको दिमाग में, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 90% of the patients will not have problem with sleep disturbance with escitalopram. There are rare incident with escitalopram also disturb sleeps. तो वैसा पेशेंट को हम लोग मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं। Those are not usual number of patients. इस कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को हम मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं। सर जैसे 3-4 हफ्ते में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो मतलब जैसे हम पहली प्रिस्क्रिप्शन में हमने दिया कि 2 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, उसके बाद विल एड्रेस फॉर द साइड इफेक्ट्स, और पेशेंट जैसे सर ने अभी बताया कि 2 से 4 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते में पीक असर आता है, तो डोज जब इंक्रीज करनी है, वी हैव टू इंक्रीज आफ्टर 4 वीक्स और कैन वी इंक्रीज आफ्टर 2 वीक्स? शुरू में आप 4 वीक तक वेट करके आप इंक्रीज कीजिए, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 2 वीक में भी कर सकते हैं। मैं तो मेरे पास आ जाऊंगा तो 1 हफ्ते में भी कर देता हूँ, तो डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो जो मैं बोला वो लॉन्गर ड्यूरेशन इज अ बुकिश थिंग, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यू कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन। ओके सर। आपको हम लोगों को बोलने में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 2 हफ्ते में बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बढ़ाने का जो डोसेज है आप लोगों को भी, इट इज नॉट अ मैक्सिमम डोसेज, इट इज एट अ मॉडरेट डोसेज। और सर एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये था, समटाइम्स पेशेंट्स जिनको जैसे ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, साथ में बेंजोडाइजेपिन देते हैं, दोज पीपल डोंट टेपर इट ऑफ आफ्टर 2 to 4 वीक्स। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने कैसे काउंसिल करके उनकी मेडिसिन बेंजोडाइजेपिन्स को टेपर करना है या स्टॉप करना है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, ज्यादातर पेशेंट बेंजोडाइजेपिन नहीं छोड़ पाते। अच्छा, दे आस्क फॉर रिपीट प्रिस्क्रिप्शंस। नहीं, आप डॉक्टर साहब ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका एंटिसिपेशन है? सर एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर आई एम वर्किंग इन ओएसटी, तो सर हमारे पास सर बहुत सारे पेशेंट विद कोमॉर्बिड डिप्रेशन के साथ भी आते हैं, तो उनमें हम जैसे थोड़े टाइम के लिए देते हैं, लेकिन फिर दे आस्क फॉर रिपीट प्रिस्क्रिप्शन। नहीं, जब बेंजोडाइजेपिन आप लोग दिया है वो समय में एंटी डिप्रेसेंट भी शुरू किया है साथ साथ में या नहीं है? सर जैसे कुछ केसेस में जिनमें लगा है कि इनको डिप्रेशन है और सिम्टम्स सारे हैं क्राइटेरिया में जो फिट होते हैं, साथ में बेंजोडाइजेपिन भी दिया है, तो मतलब रिपीट प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पे पंजाब में जो पेशेंट बुप्रेनॉर्फिन पे हैं, वो भी कोमॉर्बिड मतलब साथ में बेंजोडाइजेपिन प्रिस्क्रिप्शन मिसयूज करते हैं, या फिर अलग से सेडेटिव हिप्नोटिक का भी यूज लेते हैं काफी मात्रा में। तो वैसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं और दे आस्क फॉर रिपीट प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर साहब वो तो ऐसे पेशेंट में सर कैसे? हर तरह का पेशेंट आते हैं, लेकिन आप जो पूछ रहे क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक पूछिए। आप बुप्रेनॉर्फिन का साथ पेशेंट डिप्रेशन हो गया, एंटी डिप्रेशन दिया, बेंजोडाइजेपिन दिया, वो बेंजोडाइजेपिन बंद नहीं करना चाहता है, वो अलग क्वेश्चन, अलग तरह का पेशेंट है। बुप्रेनॉर्फिन नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन क्या है, एंटी डिप्रेशन दिया है, बेंजोडाइजेपिन दिया है, वो पेशेंट बेंजोडाइजेपिन बंद नहीं करना चाहता। दोनों पेशेंट अलग अलग है।
सर ऐसा भी है, मतलब जो खाली डिप्रेशन वाले पेशेंट है, एडिक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बेंजोडाइजेपिन जो है तो ये मतलब क्वेश्चन के लिए देखने में मैं है नहीं आपको छोड़। आसान तरीके में बता देता हूँ। ये पेशेंट्स में आप जब शुरू में जो पहली कंसल्टेशन करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को बोल देना चाहिए कि आपका जो एसिटोलाप्राम जो दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, दिस इज योर मेन मेडिकेशन विच विल स्टे फॉर 6 months to 1 year। तो सबसे पहले क्वेश्चन काउंसलिंग में ये समझा देना चाहिए। और दूसरा, जो बेंजोडाइजेपिन जब शुरू करते हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो शुरू में 10 दिन या 20 दिन के लिए दिया जाता है, उसके बाद नहीं देते। समझ गए? तो इतना आप बोल देंगे, 90% मोर देन 90% ऑफ पेशेंट विल नॉट आस्क फॉर बेंजोडाइजेपिन आफ्टर 2-3 weeks। व्हाई? आई विल आस्क, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जो बेंजोडाइजेपिन जो शुरू में देते हैं एसिटोलाप्राम का साथ या फ्लोक्साटिन का साथ, देयर आर रीजन टू टेल। डॉक्टर राहुल ने बहुत अच्छी तरह वर्ड बोला है, राहत के लिए देते हैं। एक राहत है, और दूसरा चीज है फ्लोक्साटिन जो है, ये सेरोटोनिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ब्रेन में। एंड सेरोटोनिन जो एक पहला दिन जो बढ़ा देता है, एंजाइटी सिम्टम भी बढ़ा देता है। आप एक्चुअली एंजाइटी के लिए दे रहे हैं, डिप्रेशन के लिए दे रहे हैं, लेकिन एंजाइटी बढ़ा देता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्लोनाजेपम देते हैं। तो एक वो ये हफ्ता 10 दिन कवर करने के लिए। और एसएसआरआई का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है 10 दिन का बाद, जब वी प्रिज्यूम एसएसआरआई विल स्टार्ट एक्टिंग आफ्टर 10 days, एंड बाय दैट टाइम बेंजोडाइजेपिन टेपर बंद कर देते हैं। तो पहला पेशेंट जो आप बोले एंटी डिप्रेसेंट पे शुरू किया है, मेरा हिसाब से मोर देन 90% ऑफ पेशेंट विल नॉट आस्क फॉर बेंजोडाइजेपिन। Coming to buprenorphine and antidepressant benzodiazepine, it is not easy patient to treat। सबसे पहले बुप्रोनॉर्फिन पेशेंट के साथ आप जो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट के साथ बेंजोडाइजेपिन का जरूरत है या नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क। इफ बुप्रोनॉर्फिन पेशेंट हैविंग सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड बेंजोडाइजेपिन। आई विल जस्ट सिंपली गिव एसिटोलाप्राम एंड सी व्हाट विल हैपन, एंड आई विल आस्क हिम टू कम within 3-4 days or within a week to see whether really activating symptoms हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे जो क्लोनाजेपम हम जो देते हैं, ये बहुत 100% जरूरी नहीं है देना ही है। इट्स डिपेंड। हम लोग ऐसे ही दे देते हैं को प्रिवेंशन मोड में, लेकिन यहाँ पे प्रिवेंशन मोड काम नहीं करेगा। बुप्रेनॉर्फिन ऑलरेडी प्रोन टू एडिक्शन। तो वैसा पेशेंट में यू हैव टू बैलेंस। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं आपको थोड़ा सिंपली भाई समरी बता देता हूं। Why we ask common mental disorder is that it is a common high prevalent psychiatric disorder present in general population, and luckily same high level prevalent psychiatric disorder is also present with all MBBS doctors clinic. Only thing is that doctors doesn't know because we are not trained during MBBS। जब यहाँ पे आते हैं एमबीबीएस लेके डिग्री लेके पीएचडी में काम करने के लिए आते हैं, तब पता चलता है यार हमको ये चीज सिखाया नहीं है। तो ये दिस द वे। सो दिस सेशन वाज फोकस्ड ऑन दैट, एंड व्हाई वी ट्राई टू गिव दिस एक्चुअली फॉर साइकियाट्री। एमडी साइकियाट्रिस्ट के लिए हम लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर करके टॉपिक नहीं करते। हम करते हैं डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी डिसऑर्डर अलग है, सोमेटाइजेशन अलग है। ठीक है, आपके लिए सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग किया गया है, बिकॉज ओनली वन रीजन, because this is a doctor friendly illness। I'm repeating is, it is a doctor friendly illness। Reason is that you people are already seen thousands of patients in your practice till date। It is unfortunate you may not know that is a common mental disorder, or else you are given equivalent treatment। Equivalent treatment may be symptomatic treatment, or else you are given sedatives, or else you try to manage in your own way। But despite that, patient majority of the patient is not improved। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we have used the trans diagnostic treatment approach। Trans diagnostic treatment approach मतलब होता है many diagnosis but treatment is same। डायग्नोसिस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, बात करने के लिए पर्पस के लिए अलग अलग डायग्नोसिस बना लो, लेकिन ट्रीटमेंट तो एक ही है। And this concept is evolved based on the concept which I spoke last time। Paracetamol is given for all febrile illness irrespective of their etiology। तो सेम concept we have used in CMD। एंटीडिप्रेसेंट पहले दे दो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, सोमेटाइजेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज
All antidepressant efficacy is same. Only side effect profiles are different. And you will choose antidepressant based on side effect profile, clinical profile of the patient, and government में दवाई मिलता है नहीं मिलता फ्री में. Often that is the thing. अब patient पैसा ही भी देगा, उसमें क्या है. So based on this thing, we prepared this and we try to give a very simplistic approach. और अब CMD को आप लोगों को समझाना बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आप लोग हर दिन ये पेशेंट देखते रहते हैं, कोई नया पेशेंट नहीं है. ठीक है. तो I will just Rahul, I have 2-3 questions sent to me personally here. I will take it up that questions. Yes, sir. Okay. One minute. Sir, one odd question. Actually, it is not an odd question. It is a right question. Do this patient needs to know that they are prescribed psychiatrist treatment, because many patient comes with these disorder? Acha. This is very good question. It is not really hard. It is a right question. आपको सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है. मैं आपको बता देता हूँ क्यों पूछा गया होगा. यह साइकियाट्रिक दवा है, पेशेंट को कैसा समझाना है. दिस इज योर वन डाउट इन योर माइंड. और दूसरा डाउट है, मैं पेशेंट को बोल दूंगा तो मुझे बहुत गाली दे देगा, या ये मे नॉट एग्री विथ मी, मेरा रेपुटेशन खराब कर देगा पे. ठीक है. दिस आर द थिंग्स. सबसे पहले जो आमतौर पे मैंने प्रैक्टिस किया है, इवन आई हैव वर्कड इन मेनी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया, इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली, Ram Manohar Hospital Delhi, and PGI Chandigarh I worked one day, SGPJ Lucknow I worked, and many places across the India. एक चीज कॉमन जो है पेशेंट्स में, पेशेंट को सिम्टम्स का इंप्रूवमेंट चाहिए. उनका डायग्नोसिस का कोई मतलब नहीं है, दवाई का कोई मतलब नहीं है. आमतौर पे इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, very few number of patients, they are very particular about diagnosis, they are very particular about diagnosis. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, मैं बोला आपको आंसर, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का आंसर बता दूंगा, और लेस नंबर ऑफ पेशेंट हु वांट्स टू नो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कैसा आंसर करना है. तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है. ठीक है. सही क्या बोलना है. जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को जब काउंसलिंग करते हैं आपको ये समझाता है, तो मैं जो आमतौर पे करते हैं, देखिए ये मन की बीमारी है, शरीर को भी बीमारी आता है, वैसा मन को भी बीमारी है. तो ये दवाई लेने का जरूरत है 6 महीने से 1 साल लेने का. तो जब ये बोल देते हैं, आमतौर पे पेशेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है. लोगों को बहुत अच्छी तरह दिमाग में चल जाता है ये मन का बीमारी है. अब डिप्रेशन में पेशेंट फंसा हुआ है, वो खुद ही उन्हीं को मालूम है सफरिंग कितना है. तब आप ऊपर बोल देंगे आप मन का बीमारी है, बहुत लोगों को खुशी लगता है, वो ये भी सही है सर, मन को बहुत खराब लग रहा है आजकल, पहले ऐसा कहीं नहीं होता था. ठीक है. ये रेस्पॉन्स टू मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट. और कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स है, उनको डायग्नोसिस भी चाहिए और दवाई का बारे में बोलना है. तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता दीजिए, दिस इज द मन की बीमारी है. आप कॉमन तौर पे आप ले टर्म में मेंटल की बीमारी है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, इसका दवाई यही है. आप चाहोगे तो ले सकते हैं, नहीं चाहोगे तो आपकी मर्जी, जो करना है कर लीजिए. आपको मैं ये बता सकता हूं कि ये दिस इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर योर सिम्टम्स. 2 तरीका का है, 2 ऑप्शन आपका पास है. एक, दवाई नहीं शुरू कीजिए, और सेकंड ओपिनियन किसी का साइकियाट्रिस्ट का पास है, कहीं का जाके ले लीजिए. ये दूसरा, मेरे ऊपर भरोसा है, दवाई शुरू कर लो, 2-3 हफ्ता ले लो और देखो इंप्रूवमेंट होता है नहीं होता है. इंप्रूवमेंट होगा तो कंटिन्यू करो, इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आ जाओ मेरे पास, बताते हैं क्या करना है. सो दिस द वे यू नीड टू हैंडल. ठीक है. और डॉक्टर साहब, आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन भेजा था, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज है, हाँ, एक है, सर, एंगर मोर देन नॉर्मल, इज इट कम अंडर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, हाउ टू मैनेज इट?
I would respond to this question. Rahul, I am just taking over some of the question which is not really directly related to CMD. Anger more than normal, is it comes under psychiatric disorder? How and manage it? देखिए, इसको नॉर्मल रेस्पॉन्स भी है, अबनॉर्मल रेस्पॉन्स भी है, अब बीच में आज का टॉपिक का रिलेटेड रेस्पॉन्स भी है. सो 3 तरह का रेस्पॉन्स मैं आपको दे देता हूं, आप डिसाइड बेहतर सोच लीजिए. एक रेस्पॉन्स है एंगर. एंगर आना चाहिए नहीं आना चाहिए आदमी को? जानवर को भी आता है, हम भी जानवर ही है ना, सो एनिमल है. आना चाहिए sir. It is okay to have anger. Yes, but question is how much, when, Yes. how you are expressing. True. ठीक है, तो इफ ना एंग्री तो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सोचते हैं बुद्धा हो जाएगा. ठीक है, और एंग्री अबनॉर्मल जब होता है तब यू डिस्प्ले इट एट अबनॉर्मल सिवियरिटी, अबनॉर्मल टाइम एंड अबनॉर्मल वे में. ठीक है, तो वो जो हम तौर पे बताते हैं अदर सिवियरिटी, अदर एक्सट्रीम, हम लोग बोलते हैं जो मान के चलिए मैं साइकियाट्रिक नहीं हुआ होता तो इसको अबनॉर्मल कब मानता? हो सकता है पॉसिबली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लोगों का पास ये ज्यादा रहता है. ठीक है, दिस इज अनदर एक्सट्रीम. वन इज नॉर्मल, अनदर इज टोटली अबनॉर्मल एक्सप्रेशन इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर. और तीसरा जो आज का टॉपिक रिलेटेड है, डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, सोमेटाइजेशन में हो, तीनों में भी एंगर कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स. तो हाउ टू रूल आउट नॉर्मल टू अबनॉर्मल आर रिलेटेड टू सीएमडी? मैंने आपको पहले ही बोला नॉर्मल है या नहीं, कभी एक आध बार हुआ, रीजन था, वो बहुत ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल करके सोच लीजिए, एक बार हुआ. लेकिन बार बार हो रहा है, सीवियर रेंज में हो रहा है, ये इसका बचपन से ही ऐसा ही चल रहा है, दैट इज पॉसिबिलिटी गिविंग हिंट टुवर्ड्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर. वो चीज हम लोग आप लोगों को सिखाते नहीं है, वो प्योर साइकियाट्रिस्ट का डोमेन है. ठीक है, उतना ज्यादा आप सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. दूसरा चीज है, अब कॉमन एंगर रिलेटेड टू कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? सर ये हो सकता है, आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा करता है सर ये पेशेंट, ये पर्सन. कब से? सर 1-2 महीने से. पहले तो बहुत शांत था सर, कभी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करता था, आजकल कर रहा है. तो आपका काम पड़ेगा कब से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है. कब से हो रहा है गुस्सा, और उसका साथ एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है या नहीं? आजकल मन कैसा है, मिजाज कैसा है, उदासी है या नहीं, आजकल टेंशन ज्यादा है या नहीं? तो ये दैट विल डिराइव टुवर्ड्स वन ऑफ द इलनेस ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, तो सिर्फ एंगर कैन बी नॉर्मल टू अबनॉर्मल और रिलेटेड टू कॉमन मेंटल डिसऑर्डर. दिस इज द रेस्पॉन्स. आई होप आंसर्ड योर क्वेश्चंस. नेक्स्ट कमिंग टू, हाँ यहाँ पे डॉक्टर गुंटास ने लिखा है, T was treatment of choice for somatization disorder in elderly or comorbid patient. I would presume this is the simple question, elderly or comorbid. और आप क्वेश्चन इसलिए पूछे होंगे कि हम अमिट्रिप्लिन लिख दिया है, उसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है, क्या करना है. And keeping that thing in that view, still somatization disorder के लिए best choice would be amitriptyline to the dosage which we are given in CSP up to 50 mg. More than 50 mg of amitriptyline, please don't prescribe in elderly. If need that kind of doses, send to psychiatrist one. ठीक है. और दूसरा है comorbid patients में. Comorbid patients में we would think somatization disorder up to 50 mg with any other medication is not a major issue. ठीक है, तो मोर देन 50 mg का बारे में आप एंटीकोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट के बारे में सोचना है, नहीं तो जब तक आप ज्यादा नहीं सोचना है. और मान के चलिए अमिट्रिप्लिन, मैंने खुद ही रिसेंटली एमआई हुआ है 2-3 महीना पहले, उनको भी अमिट्रिप्लिन 50 mg तक दिया हूं. ठीक है, लेकिन मुझे भी डर रहता है 50 mg से ज्यादा देने के लिए. और ये भी पूछना है आप अमिट्रिप्लिन क्यों दिया है उसको. अनदर चॉइस विच आई वुड थिंक इज ए डोथियापिन. डोथियापिन हम गवर्नमेंट सेटअप में फ्री नहीं है, तो पेशेंट को बोलेंगे बाहर खरीदो सर, नहीं पैसे है, तो हम बोलते हैं चलो अमिट्रिप्लिन लो डोसेज में दे देते हैं. सो दिस इज द वे. नहीं तो और है कि पेशेंट बोलता है सर पैसे का कोई चिंता नहीं, दो और बेस्ट मेडिसिन दीजिए.
In that conditions, we would still go to SSRI for somatization patient, because SSRI also works in so many of the somatization patients. So in that case, my choice would be sertraline. ठीक है. Our next question comes to I think Rahul, you can respond. Anchal, Dr. Anchal का question है, sir, some patients comes with just the first episode of palpitation and घबराहट, and they don't have any previous history of such episode or stressful life. So SOS medication to be given and follow-up to be done. Query. Rahul, can you respond to Dr. Anchal question? Anchal, आपके क्वेश्चन के बारे में, if the patient has come for the first time, ऐसे palpitation, घबराहट, and they don't have any history, जैसे हमने बोला है, first we should always look for any medical illnesses which can explain this symptom. तो जैसे आपने बोला है, पहले कुछ एपिसोड ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, ओके, सो ट्राई टू गेट मोर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में आपको कोई मेडिकल इलनेस का कुछ पता नहीं चलता है and the patient is having such an episode, then you can go ahead and give an SOS. but जैसे हमने बोला है, for how long this thing is happening, अगर ये आपने बोला है first episode है, you can always reassure, you can ask them to come back after 2 weeks to you. if such episodes happen, अगर उनको लगता है कि फिर से ऐसा होगा, तो you can give an SOS medication after ruling out any medical issues. okay, फिर 2 हफ्ते के बाद उनको बुलाइए, अगर ऐसा कुछ होता है, you can see what kind of illness it is, whether it's a panic, whether it is anxiety, नहीं तो जैसे सर बोल रहे हैं, can be depression. So depending on that, you can decide. But before giving any medication, be sure that कोई medical problem नहीं है उनको, कि ये जो अभी आपके पास आया है, उसमें कोई medical problem नहीं था. Okay. और थोड़ा सा मैं I will give you a little rough response. पहली बार ऐसा पेशेंट घबराहट palpitation में आया है, तो think of the worst. You don't have to think as a psychiatric disorder. कोई प्रॉब्लम नहीं है if panic disorder है. पैनिक डिसऑर्डर का एक खासियत है, 10-15 मिनट में पैनिक अटैक कम हो जाएगा अपने आप. पेशेंट आराम से रहेगा, साथ वालों को भी आराम हो जाएगा. लेकिन इफ कम नहीं, आप साइकियाट्री नहीं सोचेंगे, तो क्या होता है? और यू थिंक एज वर्स्ट पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ एमआई एंड ट्रीट द वे यू डू ईसीजी एंड सी व्हाट यू कैन डू. लेकिन 15-20 मिनट के अंदर पैनिक अटैक कम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है यू आर डीलिंग समथिंग सीरियस, अदर मेडिकल इलनेस. प्लीज थिंक इन दैट वे. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू is there any sir, one more question is there, I think Dr. Sahil Mittal, is there Yeah, any medical certificate required for medical officer prescribing medicine? Is there any certificate required for medical officer to prescribe medicine? No, medical officer to prescribe medicine means I would presume psychiatric medications. Okay, I will ask you. आप तो टॉन्सिलाइटिस का मेडिसिन भी देते हैं ना? वहां पे टॉन्सिलाइटिस मेडिसिन नहीं बोलते हम लोग, मेडिसिन को दे देते हैं. और एटीटी का दवाई है, ट्यूबरकुलर मेडिसिन करके नहीं सोचते हैं, लेकिन दे देते हैं. अब जब साइकियाट्रिस्ट का आता है, तो साइकियाट्रिक मेडिकेशन करके क्यों डर जाते हो? इसलिए डरते हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं किया, पहली बार लिखना है, नहीं लिखना है. ये दिस द नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. डॉक्टर साहब, हम लोग जो दिया है यहाँ पे मेडिकेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट ऑफ WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स दैट इट शुड बी अवेलेबल टू प्राइमरी केयर पेशेंट्स. And another thing is that please remember all MBBS course is related to primary care. ठीक है. And in that way you have to give medication. आप DMHP का ड्रग लिस्ट देख के देखिए, it should be available at PSC. इसका मतलब है कौन देगा? नर्स तो नहीं देगी ना, आयुर्वेद डॉक्टर तो नहीं देगा, आप ही देना पड़ेगा. ठीक है. आप शुरू करके देखिए, उसका मजा ही अलग होता है. आपका खुद ही पेशेंट इंप्रूवमेंट होने लगेगा. आप ये क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे ही नहीं आप. ठीक है. और कभी नेक्स्ट I don't know, one more question before that I got at my individual level. One of my patient have a dental neck pain. She has done doctor shopping, but no medical diagnosis made. Should I label it as a somatization disorder? तो इसमें क्वेश्चन ये है, duration of the illness is not mentioned. ठीक है. डेंटल पेन आई कैनॉट एक्सपेक्ट मोर देन 6 months.
ठीक है, neck pain is definitely possible for more than 6 months. ऐसा सिचुएशन में I don't know whether you can call it as somatation. Neck pain more than 6 months, doctor shopping है, you can still go ahead with diagnosis of somatation, give amitriptyline low dosage and see follow it up. लेकिन डेंटल पेन फॉर मोर देन 6 मंथ आई एम नॉट श्योर डॉक्टर, आप थोड़ा देखना पड़ेगा डेंटल में क्या है, एटलीस्ट मुंह खोल के तो देख लीजिए क्या है, लेकिन मास्क डाल लीजिए मुंह खोलाने से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैविंग ग्लूकोमा, which SSRI safe? Dr. Rahul. Yes, sir. So you can give escitalopram without any worries, because many a times escitalopram is a antidepressant which has less interaction with other molecules also. तो अगर आपको कुछ डाउट होता है कि कौन सा SSRI मुझे प्रिस्क्राइब करना है, तो आप escitalopram प्रिस्क्राइब कर लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये कंडीशन है तो इसमें एक एक सीखना है मुझे, so easier would be to prescribe escitalopram if you have any doubts with regards to medical problems. अच्छा, और डॉक्टर साहब है, ग्लूकोमा ओपन एंगल है, क्लोज एंगल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन यू आर वेरी स्पेसिफिक, SSRI, तो वी विल रेस्पॉन्ड टू SSRI. इफ इट कम्स टू TCA, टू टाइप ऑफ ग्लूकोमा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, दोनों में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यू आर आस्किंग SSRI, वी विल रेस्पॉन्ड टू SSRI. If you are thinking about drug to drug interaction from SSRI drug to drug of the glaucoma, then escitalopram is the best choice. And if you are thinking SSRI drug with glaucoma is a pathology, still escitalopram is the best. Next choice you can be is sertraline. ठीक है, then comes patients having asthma and any respiratory depressive disorder with severe depression. In that case, clonazepam or diazepam can be given to such patient. No, I think some typal problem is there. What I presume, Rahul, patient having asthma and a respiratory problem, okay, and patient having severe depression. So we are telling them to give SSRI and benzodiazepine. Can we give in that patients? In such cases, you can actually, the patient has asthma or respiratory depression, along with depression, you can still give benzodiazepines because we are giving for low doses. But if you have little doubt, then what you can do is, यहाँ पे जो clonazepam और diazepam है, these are longer acting benzodiazepines. तो आपको लगता है कि बहुत दिक्कत होता है, तो you can go for short acting benzodiazepine जैसे lorazepam है. Okay, so in case if you have little more confusion कि दे सकता है, कोई problem हो सकता है. Second, you can check for the status of asthma कि क्या चल रहा है, क्या medicine ले रहे हैं उसका, कि अभी episodes कितना frequency में आ रहा है, उसके लिए कुछ और दवाई ले रहे हैं. जैसे people might be on metered dose inhalers, people might be on steroids for asthma also. ठीक है, तो उनका जो medicine है, उनका जो history है, उसके हिसाब से you can decide. जैसे सर ने बोला है, it is recommended but it is not mandatory for everybody to begin benzodiazepine. अगर आपको लगता है कि उनका नींद का प्रॉब्लम है, ओके, और इनका एंजाइटी ज्यादा है डिप्रेशन के साथ साथ, तभी हम बेंजोडाइजिपिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट. अगर उनको उस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन चूज नॉट टू गिव आल्सो इफ यू आर वरीड कि क्यों देना है. अगर दे रहे हैं, वी कैन क्लैरिफाई अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अस्थमा डज दे हैव एंड कितना सिवियरिटी है, अभी कैसा चल रहा है. There may be people who might have diagnosis of asthma, लेकिन 1-2 साल से कुछ नहीं हुआ है, you can go ahead, आराम से दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरा चीज डॉक्टर राजवीर कौर जी, कि actually the benzodiazepine known to cause respiratory depression, especially in parental, not with very less likely with oral, and it is a dose dependent. And we are asking you to give it very, very low dosage, not more than 0.2 or 0.5 mg of clonazepam, or diazepam not more than 10 mg of diazepam. Okay? If asthma is well controlled and we have very low anti-asthmatic medication, you don't have to worry too much on this part. Okay? If asthma is controlled. अब पेशेंट कंट्रोल में नहीं है, 2-3 दिन पहले भी asthma attack हुआ था, अभी भी डिप्रेशन करके आ रहा है,
तो ऐसा सिचुएशन में डिप्रेशन करके क्यों डायग्नोस कर रहे हो? 2 दिन पहले ही अस्थमा में उड़ा अटैक हुआ है. Why don't you just ask him to come back after 10 days and reassess whether patient is having depression or not? Because when patient goes to acute respiratory problems and all, it looks like depression for that point of time, but it may not be really depressive disorder as a medical illness. ठीक है? तो for all the purpose and आपको देना ही है लग रहा है, तो why don't you start low dose of escitalopram clonazepam escitalopram 2.5 mg 2 दिन और 5 mg और 2 दिन ऐसा बढ़ाते जाइए without benzodiazepine. That is another possible way. Sir, any medical legal issues related to psychiatric medication? This is very common question which we ask, and my response, Dr. Sahil ji, आप थोड़ा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको. मेडिकल लीगल इश्यूज मतलब व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन. आमतौर पे हम लोगों का इंडियन डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन में दिस प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट वैलिड फॉर मेडिकल लीगल रीजन ये लिख देते हैं. ठीक है, लेकिन आप जो भी चाहिए वो आप लिख सकते हैं. लेकिन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कोर्ट पे गया तो दैट इज वैलिड. दिस इज द रियलिटी. ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एनी मेडिकल लीगल इश्यूज रिलेटेड टू साइकियाट्रिक मेडिकेशन? आप डॉक्टर साहिल जी आप आके पूछ सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आई हैव टू प्रिज्यूम माई सेल्फ एंड रेस्पॉन्ड. अच्छा, अब इफ डॉक्टर साहिल इज नॉट कमिंग आई विल टेल यू. Probably the question I would interpret in another way. As an MBBS doctor, can I prescribe psychiatric medication? Yes, I already responded earlier to questions. आप प्राइमरी केयर को मेडिकेशन इलनेस है, प्राइमरी केयर मेडिकेशन एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, यू हैव टू गिव. ठीक है, हम लोग डरते हैं कि हम लोग एमबीबीएस में प्रैक्टिस नहीं सिखाया नहीं गया है. और मेडिकल लीगल और दूसरा चीज हो सकता है, पेशेंट्स कभी मान के चलिए एंटीसाइकोटिक दे दिया है, को प्रिस्क्रिप्शन लेके जाकर कोर्ट में दे दिया है, तो आप कोर्ट में जाके क्या बोलना पड़ेगा? मेरा in my assessment patient had a depression, I have given this medicine. And आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, आर यू स्पेशलाइज्ड इन साइकियाट्री? आप बोलो नहीं, स्पेशलाइज नहीं हूं, लेकिन प्राइमरी केयर साइकियाट्री में हर एमबीबीएस डॉक्टर हर पीएचसी में देना पड़ता है. दिस इज द गवर्नमेंट रूल एंड दिस इज द प्राइमरी केयर में द फर्स्ट लाइन ड्रग्स. दिस इज नॉट द स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ ड्रग्स व्हिच वी हैव टू यूज. ठीक है, एंड इसलिए डीएमएचपी है, क्लिनिकल शेड्यूल आपका हाथ में है. ऐसा कोर्ट केस आ गए तो क्लिनिकल शेड्यूल दे कोर्ट में दे के हम लोगों को फंसा दो, हम रेस्पॉन्ड कर लेते हैं उसके लिए. आपको ये चिंता करने का जो ये जरूरी नहीं है. Whatever we have written to CSP, it is a commitment to country which we are given from NIMHANS, and we'll stick to it. And I am sure Dr. Suresh Badamat, who is a forensic expert and he is a head of forensic psychiatry, he will come to next session sometime. Maybe I would request you people to ask same question to him again, and he will respond in a much better way. ठीक है, तो Dr. Sahil ji, I would request you to again ask same question to Dr. Suresh, who will come maybe third session, who is chairing. Yes, sir. Next session. Yeah, please ask this question. ठीक है, only one assurance I'll give. कोई पूछेगा तो CSP पकड़ा दो, उसमें हम लोगों का नाम है. कोई सामान आएगा तो हमको आने दीजिए, and we will respond. Okay, this is the commitment which we are given to country, and we'll try to safeguard all MBBS doctors who are followed CSP. That is a worst situation. Till last 6 years, nobody has asked, no court has asked, no authorities has asked. Few authorities have asked, especially Telangana government, we have responded well, and they have started doing that. Okay? Court, till now, nobody has asked. So we have no question. Anybody has final question, please ask now. Chat box में नहीं है questions. If no questions, we will wind it up. And we had a good weekend. We had a long discussion, and thanks for all of you spending few hours with us in the Saturday evening. And I think Rahul has done wonderful work with you, convincing in
probably I would say that one step he has gone ahead of us to convince you people, even though he is a new entry. And thanks, Dr. Rahul. Keep it up your enthu. Thank you, sir. And Thank you. thanks to Government of Punjab, DMHP program, to giving us opportunity to talk from Nimans to Punjab doctor. We are really happy. And as I told, and we are really thinking about seriously about buprenorphine things to help you in a much better way. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all.